Okay, I guess now recording has started. Registration there, Reshma? Sir, How many registrations? 180. So, Pranav, let's wait. Wait for another 5 minutes. We'll wait. Good evening, Asavaji. Good evening, all of you. I, CA Pranav Mantri, welcome you all for the today's VCM on project reporting. Project report, yeah, a very interesting topic which every business requires different aspects like technical, financial, economic, production, and even managerial. And the project report serves and plays a very significant role in the business phases, right from its startup, its growth, and even expansion. It has served as the blueprint for all the important operations. So a very well thought of topic. So I welcome today's speaker, CA Shiv Bhagwan Asawa sir, CA Samir Ladda sir, Chairman and Treasurer of Pune ICAI, and CA Kashinath Pathare sir, Secretary of Pune ICAI. Now I would like to request CA Samir Ladda sir to please address the audience. Over to you, sir. Well, thank you, Pranav. Today's speaker, Shivagan Asaji, past chairman of Pune branch, young and dynamic MOC, CA Pranav Mantri, all the August audience who have joined today's webinar. Welcome in today's webinar on project report. This subject was long waiting for Pune branch. Lot of demand was there for this subject. So I personally thank Shiv Bhagavan Asaji for giving your valuable time to our branch. And whenever I thought of this subject, the first name came in my mind was yours only. So yeah, I know you have taken a lot of sessions on project report. So it's really our privilege that you are here for giving session on project report to our members. Dear members, the project report, in my opinion, one of the very good area of practice where good money can be earned. Shiv Bhagavan Asaji must inform you about how money can be earned from this project report assignments. Because in my view, when we do audit work, it is a compliance work, and generally clients never happy for giving you good money for compliance work. In project report, where you give them to money or subsidies, etc. So they will be always happy to give you good money in return of your service to them in case of project reports. So you must learn this topic from today's speaker very calmly, very concentrately. So I wish you all happy learning. Before I hand over to MOC, I again want to congratulate all the members. Again, giving the news that Pune branch has recently won all the 4 awards for the members and students region. Since last 4 years, Pune branch is taking continuously all 4 awards, 2 at national levels and 2 at student level. This is happened because all the participation from all of you members. Without your participation, this record cannot be done. So I congratulate on Pune, on behalf of Pune branch, to all of you for giving such a wonderful performance at national and regional level. Also, on day after tomorrow, there is one physical session. Pranav must inform you about that session in the last of this topic. The session is on analysis of market by way of open interest. This will be physical session, and the speaker is CA Ashish Baheti, who is well-known speaker of CNBC nowadays. So all of you requested to join that session also. Register that session if you are not registered already. With this, wish you all happy learning. Over to Pranav. Okay, thank you so much. It's indeed a glad news that we have backed 2 national level awards at for best branch and even for the best students committee over here. So congratulations to all of you. And yes, without your support, sir, you are quite instrumental in the entire throughout the year. You have taken many activities, and yeah, that was all because of you. So yes. Now, without wasting much of your time, I'll quickly introduce our today's speaker, CA Shiv Bhagwan Asawa sir. It's indeed my pleasure to introduce you, sir, because I have interacted with him a couple of times. And yes, as sir said,
The best faculty for the project report would be none other than CA Shivbhagavan Asawa, so a very down-to-earth person and very, very cooperative person. So, yes, 27 years of post-qualification experience in the areas of project appraisal, financial consultancy, raising of funds through debt equity, a seasoned professional with verifiable after year success. Sir is an out-of-box thinker with distinguished abilities in providing tactical business solutions, arranging funds by way of equity, different and for in different chronicles for different of his clients. He has gained a great proficiency in identifying and adopting emerging trends, spreadheading business valuation, and corporate restructuring projects, encompassing development of strategy, solicitation of interest, business valuation, financial analysis, due diligence, negotiation, documentation activities, and the list goes on and on and on. A keen analyst with exceptional negotiation and relationship management skills, and even Sir has syndicated more than rupees 5,000 crores for various MSME clients from different banks and financial institutions in last 2 decades. So with such a dynamic experience, it's indeed a pleasure to have you here, sir. I really thank you from Pune branch of ICI to take out your valuable time and be here for this session. Without wasting much of anyone's time, I hand over the session to you, sir. Over to you. Thank you, Pranav, for kind introduction, and thank you, Team Pune, Chairman Samit Ji Ladda, for inviting me to have this session. Of course, I would love to have physical seminar, but anyway, during this pandemic, I think VCM is one of the best option where you can have interaction with participants from different places. Before I proceed to my subject, let me tell you, I generally encourage people. See, most of us are doing conventional practice, which I call debit side of your client, because you are incurring expenses of client, and probably if it is not requisite under any law, probably client may not be wanting. See, जितने client से मैं interaction करता हूँ, यही बोलता है कि यार ये गवर्नमेंट की अगर रिकमेंडेशन या कंपल्सन नहीं होती थी तो वी कुड हैव अवॉइडेड टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ कंप्लायंसेस। तो एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये वर्क धीरे धीरे कम होते भी जा रहा है। ऑलरेडी जीएसटी ऑडिट इज गॉन, टैक्स ऑडिट लिमिट इज इंक्रीज अप टू 10 crore, and probably in next 1 or 2 year 90% of the ITR will get auto populated and will be on the desktop of that individual person who can accept or rectify and file on their own. तो धीरे धीरे ये जो conventional practice है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो that's why I always suggest कि भाई आप डेबिट साइड की, जिसको conventional practice, जिसको मैं डेबिट साइड की practice बोलता हूँ, उसके जगह आप लोगों को concentrate करना चाहिए क्लाइंट के क्रेडिट साइड में, जहां आप क्लाइंट के क्रेडिट साइड पे वर्क करते हो। इट मे बी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टू ग्रो हिज बिजनेस, इट मे बी सिंडिकेशन ऑफ लोन, इट मे बी सिंडिकेशन ऑफ डेट, इट मे बी appraisal of project, it may be subsidy, where you are focusing on credit side of the client. and यहाँ generally जब आप पैसा या क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो तो क्लाइंट जनरली generous to pay you your fees. And today's session will learn how quickly you can prepare a project report that will be again multi-purpose and dynamic. तो इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर अपने को, बहुत लोगों को, शायद आप लोगों को आता भी होगा, बट इस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनाना आ जाता है 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा इन्वेस्ट करके आप प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स तो बना ही सकते हो। एंड इन ल्यू ऑफ दैट यू मे फीस वेरीज फ्रॉम 15,000 to 50,000 depending on project cost, size, how much reporting you want to do. And believe me, it will take much lesser time of filing a simple ITR or filing a tax audit report. उससे ज़्यादा, उससे बहुत कम समय लगेगा, and you will get fees 5x 10x to the fees which you charge for filing those kind of work. तो let's begin with that. तो पहले मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। I think PPT is visible.
Yes, sir, it is visible. And let's see, Excel is also visible. Now Excel is visible. Pranav, Not you are yet, sir. seeing, Not yet. you are screen share तो बोल रहा है. So if you could, Excel नहीं दिख रहा है. नहीं वो एक blue screen आई हुई है. If you could minimize that. अभी Excel दिख रहा है. No, sir, not yet. अरे ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पहले तो सब हो रहा था. Yeah, now PPT is visible. नहीं, PP, you are screen sharing PPT. So now my screen is say Word file. अभी Word file नहीं दिख रहा है. No, sir. तो एक मिनट, इसको स्टॉप शेयर करके न्यू शेयर करता हूँ. अभी वर्ड दिख रहा है. Yes, sir. Word file is visible now. ओके, एंड नाउ पीपीटी भी दिख रहा है. Yes, visible. एंड नाउ एक्सेल भी दिख रहा है. Yes, all three are visible now, sir. Okay, done. Thank you, Yeah, Pranav, for no helping problem. me. Yeah. See, today's session is, इसको स्लाइड मोड कर देता हूँ. I think F5 दबाने से ये स्लाइड मोड हो जाएगा. Yes. Today's topic is preparation of dynamic and multi-purpose project financial in few minutes. I have not added in that subject where Pune branch had mentioned, but it can be done in 15 minutes. There are hardly 12-13 steps by which you can prepare one project financials of 20-30 pages, and you can earn good amount of money. It will take not more than 30 minutes, but my request would be, whilever you are preparing any such project report or CMA data, don't give it in 30 minutes or 1 hour to your client. Give it after 48 hours. Let them understand your 10, 15, 20 years of experience you are putting in. Otherwise, client बोलेगा सर आपने तो आधा घंटा में बना दिया या 1 घंटे में बना दिया. Why you are charging 20,000 or 25,000? तो बेटर है आप बना लो आधे घंटे में. आपके ऑफिस के स्टाफ भी बना सकता है आधे घंटे में. But while sharing with client, you give it to them कि भाई 48 hours, 2 दिन लगता है. 2 दिन बाद आके आप अपना प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स या डीपीआर या पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाना. तो what I will do, I have created a dummy data. Based on that, I will prepare live project report, and the PPT which I am sharing is given stepwise. How you can prepare, what are the steps you have to follow so that you can prepare that project report quickly on time. तो पहले अपन एक जो डमी डेटा मैंने बनाया है वर्ड फाइल में, लेट मी शेयर दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ये मेरी वर्ड फाइल है. इसमें मैंने प्रोजेक्ट डिटेल एक डमी डेटा लिया है. मंत्री एंड लड्डा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, promoted by Mr. Mantri and Mr. Ladda of Pune, decided to set up manufacturing facility to manufacture product A and B at MIDC Pune as per following details. So एक project cost दिया हुआ है. Land and site development 5 crore, building and civil work 9, plant and machinery 12, miscellaneous fixed asset 2, pre-operative expenses 1, and contingency will be 5% of project cost. पहले PPT में जाते क्या स्टेप बता रहे फिर अपन करेंगे. पहला स्टेप है कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल. आपको अगर एक्सेल फाइल नहीं भी दिख रही है तो कोई वरी की बात नहीं है. पीपीटी का पार्ट मेन एक्सेल पे जो काम करेंगे आपको सारा दिखेगा. कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, मीन्स ऑफ फाइनेंस एंड कंटिजेंसी टेबल. We are completing 3 tables. One is cost of project, second is means of finance, third is contingency table. तो बेस्ड ऑन जो डमी डेटा हमने लिया उसके बेसिस पे हम लाइव प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेल शीट पे बनाएंगे. अपना पहला स्टेप ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल, मींस ऑफ फाइनेंस एंड कंटिजेंसी टेबल अपने को कंप्लीट करना है. तो लेट गो टू एक्सेल एंड वी विल कंप्लीट दैट. ये मेरा एक्सेल फाइल है. होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल. पहला जैसे आपने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मींस ऑफ फाइनेंस एंड कंटिजेंसी, ये 3 टेबल अपन बनाएंगे. तो जो डमी डेटा हमने लिया था उसके हिसाब से लैंड एंड साइट 5 करोड़. ओके, लेट वी मेक इट 5 करोड़. देन बिल्डिंग एंड सिविल वर्क इट इज 9, लेट मी मेक 9. प्लांट एंड मशीनरी 12, आई हैव टेकन 12. मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट 2, लेट मी do 2. And pre-operative I have said 1 crore, let me put
1 crore. तो मेरा ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी, दिस आई हैव हाईलाइटेड, ये छोड़ के अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल पे अपने सब कंप्लीट कर दिया। ये अपने को बाद में करना है, स्टेप 1 में नहीं करना है। अभी हमारा डमी डेटा में क्या बोला है वो देख लेते हैं, and based on that we will create provision for contingency and means of finance. तो contingency लिखा है point number 6, contingency will be 5% of project cost and it will be applicable to non-firm portion. ये मेरा contingency है, let me highlight so that you able to see in better way. तो कंटीजेंसी फंड्स एंड मींस ऑफ फाइनेंस हमने लिखा है कि टर्म लोन 75% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट, 60% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिपेड 24 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पोस्ट 1 ईयर ऑफ मोरेटोरियम फॉर कंस्ट्रक्शन और गेस्टेशन पीरियड। बैलेंस बाय ऑफ मींस ऑफ फाइनेंस में टर्म लोन छोड़ के शेयर कैपिटल आएगा और अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम प्रोमोटर्स एंटिटी टू बी ट्रीटेड एज क्वासी। तो लेट फर्स्ट कंप्लीट कंटिंजेंसी टेबल 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो बाजू में एकदम पास में ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, पास में मैंने बना लिया कैलकुलेशन ऑफ कंटिंजेंसी। हमने क्या किया है, हमने लिखा है जो नॉन फर्म पोर्शन है उसके ऊपर 5% कंटिंजेंसी। तो नॉन फर्म पोर्शन मतलब लैंड एंड साइट डेवलपमेंट 5 करोड़ है और उसमें हमने एजम्पशन में ये लिया है कि लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 3 करोड़। तो 3 करोड़ तो हमने ऑलरेडी खर्चा कर दिया, तो इसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है, लैंड एक्वायर कर लिया, तो दैट इज ऑलरेडी फर्म कॉस्ट। बैलेंस नॉन फर्म कॉस्ट है जो साइट डेवलपमेंट में लगेगा वो 2 करोड़, उसके ऊपर 5% कंटिंजेंसी, बाकी सभी के ऊपर 5% कंटिंजेंसी लेके हमने ये अराइव किया 1.30 करोड़ इज माय कंटिंजेंसी। ये 1.30 है, ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल में 1.30 आ गया। That's why I have called it a dynamic project financials. अगर सपोज 5% की जगह कोई कारण से अपने को किसी में 2% करना है, किसी में 7% करना है, जो चेंज ऑटोमेटिकली होगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल टेक दोज फिगर बिकॉज इट इज इंटरलिंक्ड। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस इज डायनामिक। तो 5% की जगह सपोज प्लांट एंड मशीनरी में 7% लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग में 2% लगेगा, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क में 5% लगेगा, मिसलेनियस फिक्स एसेट में से 10% लगेगा। तो मेरा ये 1.39 हो गया, जो प्रीवियस फिगर था उससे चेंज हो गया, ये उसी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली 1.39 आ गया। तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट ए डायनामिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कहीं भी कुछ चेंज करो ऑटोमेटिकली एवरीवेयर एवरीथिंग शुड गेट चेंज एंड योर बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एवरीथिंग शुड गेट टैग। अपन देखेंगे धीरे धीरे और भी कुछ चेंजेस करेंगे और अपन देखेंगे whether it is really I am claiming it is dynamic, whether it is dynamic or not. Now means of finance मैंने ये लिखा कि भाई टर्म लोन का पहला फिगर कि 75% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट एंड कंटिंजेंसी एंड 60% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो टर्म लोन में हमने दोनों 75% लिया है, मैं इसको 60% कर देता हूं तो मेरा टर्म लोन का फिगर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये मेरा टर्म लोन का फिगर 19.94 है। इफ यू सी द फॉर्मूला, मैंने F12, F18 एंड F14 ये तीनों पे 75% लिया जो मेरा एजम्पशन था। तो F12 में प्लांट एंड मशीनरी है, 14 में मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट है एंड 18 में कंटिंजेंसी है, इसका 75% एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो लैंड का 5 करोड़ है, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क का 9 करोड़ है, उसका 60%। जनरली नेशनलाइज्ड बैंक प्रेफर्स दैट वे ओनली। इवन यू कैन गो अप टू 75% ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल मार्जिन, बट जनरली नेशनलाइज्ड बैंक ये प्रेफर करता है कि प्लांट एंड मशीनरी में आप 75% ले लो और लैंड एंड बिल्डिंग में 60% ले लो। तो बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंगली आई हैव प्रिपेयर्ड व्हाट इज माय टर्म लोन रिक्वायरमेंट। हमने एक चीज और लिखा था कि अनसिक्योर्ड लोन आएगा 8 करोड़ और बैलेंस होगा शेयर कैपिटल। तो देखिए ये 37.5 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो मींस ऑफ फाइनेंस भी ऑटोमेटिकली गॉट टैलीड, देयर इज नो डिफरेंस नील। एंड हमने अगर सपोज कोई कारण से अपने डिसाइड किया नहीं अनसिक्योर्ड लोन 8 करोड़ नहीं 5 करोड़ लेंगे, तो अगर मैं 5 करोड़ करूंगा, लेट्स सी ये 5 करोड़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल बढ़ गया है, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। इसको 8 करोड़ करते हैं, टर्म लोन को से दोनों साइड में 75% करते हैं, सब चीज का 75% लेंगे। तो ये सब चीज का 75% लिया तो टर्म लोन बढ़ गया,
अनसिक्योर्ड लोन हमने 8 करोड़ डिसाइड ही कर रखा, ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल कम हो गया. माय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड मींस ऑफ फाइनेंस इज 10. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट्स अ डायनामिक, ऑटोमेटिकली लिंक्ड. फिगर अपने आप पिक कर लेता है. एंड तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल टू मींस ऑफ फाइनेंस होना ही होना है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ डायनामिक शीट जिसमें आपने फॉर्मूला ऑलरेडी सेट करके रखा है. तो लेट चेंज इट अगेन टू 60% सो दैट वी आर वर्किंग एज पर आवर डमी डेटा. ये हो गया. तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, मींस ऑफ फाइनेंस एंड कंटिजेंसी टेबल. Thus, we have completed step number 1. Let's go to PPT, see what is my step number 2. PPT में step number 2 है complete the production and sales statement. You arrived at sales figure which will go to working result sheet. तो अपना step 2 क्या है? अपन बनाएंगे लाइव. स्टेप 2 ये है कि एक प्रोडक्शन एंड सेल्स का स्टेटमेंट बनाना है और उससे आपको सेल्स फिगर अराइव करना है एंड उस सेल्स फिगर को वर्किंग रिजल्ट में लेके जाना है. प्रोजेक्ट फिनेंशियल के जो टर्मिनोलॉजी है, जनरली आप क्या करते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है, तो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दो अलग बनाते, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते. यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें टर्मिनोलॉजी ये होता है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, एंड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड सेल्स फिगर है वो वर्किंग रिजल्ट उसका सीट का नाम देते हैं, व्हिच इज एज गुड एज, और यू कैन से दीज आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो अपना स्टेप 2 है कि आपको प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट अराइव करना है और सेल्स फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्किंग रिजल्ट्स में लेके जाना है. तो प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हमने जो क्लाइंट से डेटा इकट्ठा किया है वो क्या बोलता है, पहले वो देख लेते हैं, एंड बेस्ड ऑन डेमी डेटा वी विल प्रिपेयर कंप्लीट प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मींस ऑफ फाइनेंस, 3 टेबल कंप्लीट कर लिया. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बोला है कमर्शियल प्रोडक्शन टू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 23, 360 days in a year, 3 shift basis. Install capacity product A 2 lakh liter per month, product B 1.5 lakh liter per month. Capacity utilization 60, 70, 80%. Thereafter 5% price growth year after year. Okay, let's do it first. Let's go to Excel sheet and production sales statement. वो कैसे बनते हैं वो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ. ये मेरा प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट मैंने हॉरिजेंटली सब बना रखा है. ये मेरा प्रोडक्शन है. इंस्टॉल्ड ए का कैपेसिटी जो है वो है 2 लाख लीटर, तो 18 लाख के जगह ये इसको 2 लाख लीटर करते हैं पर मंथ, 24 लाख हो जाएगा. प्रोडक्ट बी का हमने लिखा है 1.5, तो ये 18 लाख हो जाएगा, तो 1,50,000, ये 18 लाख. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस केस में हमने अज्यूम कर रहा है सेम कैपेसिटी रहेगा, बट ये कैपेसिटी चेंज भी हो सकती है. हो सकता है कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज ऐसे लग रहा है. अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन डू चेंज. हमने लिखा है 360 डेज. ओके, नंबर ऑफ 3 शिफ्ट हो गया. एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिखा है 60, 70, 80. देखिए ये जो वर्किंग सीट है इसमें 75, 85, 95% लिखा हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा सेल्स फिगर आया हुआ है. अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट चेंज. इसको 60, 70 एंड 80 कर देता हूं. ओके, तो ऑटोमेटिकली नीचे का फिगर चेंज हो गया. सेल्स प्राइस का एजम्पशन भी देख लेता हूं क्या है. सेल्स प्राइस 500 ए के लिए, बी के लिए 600. लेट मी मेक 500, लेट मी मेक 600. देखिए ये फिगर ऑटोमेटिकली नीचे के फिगर चेंज हो गए हैं बेस्ड ऑन माय एजम्पशन. अगर मैं इसको चेंज भी करता हूं, जैसे 60 के जगह से लेट से 50 कर देता हूं, तो देखिए ध्यान रखिए 136.80 है. जैसे ही 50% किया ऑटोमेटिकली 114 हो गया. एंड यही फिगर अपने को वर्किंग रिजल्ट्स में लेके जाना है. लेट मी मेक इट अगेन 60%, 136.80. ये फिगर जो है मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टर्मिनोलॉजी में जिसको वर्किंग रिजल्ट्स बोलते हैं, ये मेरा वर्किंग रिजल्ट्स है, व्हिच इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ मेरा ये सेल्स फिगर ऑटोमेटिकली वहां से पिक्ड हो गया. फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा से वहां से पिक करना है. जो यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट में 136, 159, 182, तो यही फिगर मेरे वर्किंग रिजल्ट्स में आ गया.
तो मैंने स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया. बिफोर आई गो टू स्टेप 3, लेट मी एक्सप्लेन why there should be quasi equity in your means of finance, which is very important. Let go to cost of projects and means of finance. Means of finance में आपको ध्यान रखेगा, हमने assumption में भी लिया है unsecured loan, quasi equity, ये मैंने लिया है means of finance में 8 करोड़. ये क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, आपने सर्टेन एजम्पशंस दिए हैं कि भाई इतना टर्नओवर होगा, इतना प्रॉफिट होगा. सपोज आपने बोला 100 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, वी विल अर्न 3 करोड़. बट कोई कारण से आपने 4 करोड़ कमाया है, तो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा कमाया है, तो आप कैसे ले जा सकते हो? या तो आपको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया, सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. एनीवे डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली टैक्स भरना है. तो एक तो आपने टैक्स फ्री पैसा प्रोजेक्ट में लगाया, जो आपने अर्न किया, सेविंग किया, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट में लगाया, एंड प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और आपको पैसा विथड्रॉ करना है, तो अगेन यू हैव टू पे टैक्स. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको अनसिक्योर्ड लोन, क्वासी इक्विटी सर्टेन पोर्शन डालना चाहिए. अभी एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या है? जनरली कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए अनसिक्योर्ड लोन, बट 50-50 बहुत सारे बैंक एक्सेप्ट करते हैं, एंड सर्टेन बैंक सेज कि नहीं आप 25% की क्वासी इक्विटी लेते हो, एंड दिस क्वासी इक्विटी दे ट्रीट एज इक्विटी पार्ट ऑफ योर इक्विटी प्रोमोटर्स इन्वेस्टमेंट. तो आपको थोड़ा बहुत अगर आप क्वासी इक्विटी लोगे, कभी परफॉर्मेंस अच्छा किया है, आपके कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपको अगर एडिशनल पैसा कोई दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना है, तो दिस क्वासी इक्विटी विदाउट पेइंग एनी टैक्स यू कैन विथड्रॉ. कैपिटल तो आप विथड्रॉ कर नहीं सकते, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विथड्रॉइंग योर कैपिटल. तो देयर इज कॉस्टली वे, आइदर यू टेक रेम्यूनरेशन और यू टेक डिविडेंड. तो डिविडेंड पे भी आज इंडिविजुअल लेवल पे वो टैक्सेबल है, तो देयर इज हेडेक, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट कंपनी लेवल, देन इंडिविजुअल में आपको टैक्स भरना है. इससे बेहतरीन उपाय ये है, सर्टेन पोर्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोजेक्ट में, उसमें सर्टेन पोर्शन बाय योर अनसिक्योर्ड लोन होना चाहिए. आई बिलीव दीज आर क्लियर नाउ. नाउ गो टू पीपीटी. हमने स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया. लेट्स सी व्हाट स्टेप 3 सजेस्ट. Step 3, complete the cost of production sheet. As I said earlier कि प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स के टर्मिनोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जगह यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीट जैसा टेबल बनाना पड़ता है. These formats are prescribed by financial institution. I have not prepared this format. I am just preparing the project financial. These formats are suggested by फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसी फॉर्मेट पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप टर्म लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट फिनेंशियल इसी फॉर्मेट में बना के देना है. तो कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट. पहले तो अपन डेटा में देख लेते क्या है कॉस्टिंग एजम्पशन, हमारे क्लाइंट ने क्या दिया है. कॉस्टिंग का डिटेल्स मैंने क्लाइंट से ले लिया. क्लाइंट बोलता है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए रॉ मटेरियल 400 रुपए पर लीटर लगेगा, प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 450 पर लीटर लगेगा, स्टोर स्पेयर दोनों केस में 50 रुपए पर लीटर, पैकिंग मटेरियल 10 रुपए पर लीटर, पावर फ्यूल वाटर 10 लाख पर मंथ, मतलब 1 करोड़ 20 लाख पर ईयर, देन 10% इंक्रीमेंट, लेबर कॉस्ट, सुपरवाइजर, इंश्योरेंस टैक्सेस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये डायरेक्ट कॉस्ट अपने को दे दिया है. अपने को सिंपल एक्सेल शीट में जाके फॉर्मूला सेट करके ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट कंप्लीट करना है. लेट गो टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट. तो मैं एक्सेल में जाता हूं, ये मैंने पहला 3 टेबल बना लिया है, और अभी ये मेरा एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेरी ये जो प्रोजेक्ट फिनेंशियल की सीट है ये डायनामिक है. देखिए यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली दे हैव पिक्ड अप फ्रॉम योर प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट वेयर आई हैव मेंशन माय प्रोजेक्ट will operate at 60%, 70%, 80% capacity. Accordingly ये फिगर यहाँ जो मैं येलो मार्क कर देता हूँ इसको, वहां से हमने लिया है. तो अभी देखिए मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ, so that I can prove this Excel sheet is very dynamic. कैसे चेंज करना है? सिंपल है. ये मेरा प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट है, यहाँ 60, 70, 80 किया हुआ है. लेट मी डू 55, 65, 75. मेरा ऑटोमेटिकली नीचे सेल्स फिगर चेंज हो जाएगा.
वो जो नीचे सेल्स फिगर चेंज हुआ है वो वर्किंग रिजल्ट्स में आ जाएगा, ये वर्किंग रिजल्ट्स में आ गया। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने चेंज किया ऊपर देखिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट में आ जाता हूँ, ये एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। थोड़ा ईयर को चेंज करना है, हमने लिखा था मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 April 23, तो लेट मी डू दैट चेंजेस सो दैट ऑटोमेटिकली एवरीवेयर वो सारे चेंज हो जाए। तो सिंपल है, जो जहां पर ओरिजिनली डाला था इसको मैं 23 और 24 करता हूँ, इसको 24-25 करता हूँ और इसको 25-26 करता हूँ, 3 साल का। तो ऑटोमेटिकली देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 23-24, 24-25, 25-26 आ गया। तो ये मेरा अभी कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम योर क्लाइंट, यू विल पुट दिस फिगर्स। तो हमने लिखा है रॉ मटेरियल में, क्या लिखा था, रॉ मटेरियल में लिखा था प्रोडक्ट ए के लिए 400 रुपया पर लीटर और प्रोडक्ट बी के लिए 450। तो प्रोडक्ट देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल स्टेटमेंट बनाया है वहां पर आपका एनुअल प्रोडक्शन का डिटेल्स है एट 55% कैपेसिटी। सिंपल है, वहां से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस है, लीटर प्रोड्यूस है, उसको ए के लिए 400 और बी के लिए 450 रुपया लीटर लेना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो डेटा है BL25 एंड BL26 आपको दिखा देता हूं कहाँ है BL25 एंड BL26। ये मेरा एनुअल प्रोडक्शन फिगर है, यहाँ 13,20,000 लीटर और 9,90,000 लीटर, इसको लिंक करूंगा पर लीटर मेरा मटेरियल कॉस्ट क्या है। तो ए है BL25 में, सेल नंबर BL26 में बी का फिगर है। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाना है और BL25 में 350 लिया हुआ था, इसको मैं 400 कर देता हूं, इसको मैं 450 ही है तो 450 कर दिया, तो ये 97 आ गया। ये फॉर्मूला को अगर दोनों जगह कॉपी कर देंगे तो दोनों जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, BL, BM एंड BL। नाउ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, हमने दोनों का प्रोडक्शन जो BL25 सेल में ए का प्रोडक्शन है और बी का प्रोडक्शन BL26 में है, दोनों का प्रोडक्शन मिला के जो प्रोडक्ट आया उसको 50 रुपए लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय करोड़ सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू करोड़। तो ये मेरा स्टोर्स एंड स्पेयर्स का आ गया है। पैकिंग मटेरियल दोनों के केस में हमने एजम्पशन ये लिया था 10 रुपए पर लीटर लगेगा, तो 10 रुपए पर लीटर ले लिया है। यूटिलिटीज, पावर, फ्यूल, वाटर मैंने लिया है 10 लाख रुपया फर्स्ट ईयर पर मंथ लगेगा, तो 10 लाख रुपया लग गया, तो 1.20 करोड़। उसके बाद हमने एज्यूम किया 10% से बढ़ेगा, बिकॉज जनरली पावर कॉस्ट इज नॉट एक्सपोनेंशियल और नॉट सिमिलर टू सेम परसेंटेज में वेरी नहीं करते। जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट प्रोडक्शन पावर कॉस्ट जनरली थोड़ा सा कम हो जाता है। वो तो डेटा आपको क्लाइंट देने वाला है, जो भी फिगर आप एजम्पशन वहां डाल रहे हो, यू हैव टू क्रिएट ए एजम्पशन शीट और आपको लिखना है कि भाई ये मैंने एज्यूम किया। सपोज आप कोई 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, वहां पावर कॉस्ट इज की फैक्टर, देन यू शुड हैव ए डिटेल्ड वर्किंग कि भाई इतना मेरा लोड रिक्वायरमेंट है, इतना पीक लोड रिक्वायरमेंट है, इतना यूनिट हम कंज्यूम करेंगे और इसका खर्चा पर यूनिट जहां जिस स्टेट में लगा रहे हो या जिस एरिया में लगा रहे हो वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आपको पावर एंड फ्यूल कॉस्ट निकालना है। मेरा कहने का मतलब है जो भी कॉस्ट यहाँ आप डाल रहे हो, डायरेक्ट कॉस्ट डाल रहे हो, उसकी वर्किंग शीट आपके पास रेडी होना चाहिए। छोटा प्रोजेक्ट है, सपोज कोई 2-4 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाया है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्म लोन ले रहा है, या 10-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, 5-6 करोड़ का टर्म लोन ले रहा है, तो जनरली योर बैंकर डजंट आस्क प्रूव हाउ यू अराइव्ड एट पावर फ्यूल कॉस्ट। वहां आप अपन सिंपल बोल देवे कि भाई प्रोमोटर से अपने एक्सपीरियंस से बोला है इतना पावर कॉस्ट लगेगा। जनरली दे डोंट बॉदर, basically they will see what is your raw material cost, what kind of GP you have, what kind of EBITDA margin you have, what kind of other issues they will look. They will not go into great details to identify how you arrived at power and fuel cost, but जो आपके की कॉस्ट कंपोनेंट है उसके assumptions आपके लिए रेडी होना चाहिए,
कल अगर बैंकर पूछे तो यू बी एबल टू एक्सप्लेन देम हाउ यू अराइव्ड एट ऑल दोस फिगर्स। फिर हमने लेबर आउट में क्या लिखा है एजम्पशंस में वो देख लेते हैं। लेबर कॉस्ट लिखा है 50 लेबर 10,000 रुपया पर मंथ एंड 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर देना है। एंड सुपरवाइजर 5 ऑन एवरेज सैलरी ऑफ 30,000 विद हाइक 10% ईयर ऑन ईयर। तो हमको सिंपल है, ये वर्कर है, मैंने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला दिया है 50 लेबर 10,000 रुपया पर मंथ 12 महीने, इसको 13 महीने भी कर सकते हो अगर आपका बोनस इंक्लूड करना है तो। जो भी करना है उसका एजम्पशंस आपके पास रहना चाहिए डिवाइडेड बाय करोड़। तो आई हैव अराइव्ड एट मेरा फर्स्ट ईयर क्या लगेगा, सेकंड ईयर में मैंने 10% इंक्रीमेंट दे दिया, थर्ड ईयर में 110% इंक्रीमेंट दे दिया। सपोज आपको सेकंड ईयर में लेबर 50 की जगह 60 लगने वाला है तो आप वर्किंग चेंज करके 60 के ऊपर आप वर्किंग करके 110% कर सकते हैं। फैक्ट्री स्टाफ में हमने बोला सुपरवाइजर 5 लगेंगे 30,000 पर मंथ into 12 divided by crore. So I have arrived at and 10% increment year after year. What will be my supervisor cost? Because these are direct costs. And other factory overheads में हमने assumption लिया है insurance and taxes is 0.5% of project cost. तो जो भी मेरा project cost है उसके ऊपर इंश्योरेंस टैक्सेस ले लिया। जनरली इंश्योरेंस टैक्सेस ईयर आफ्टर ईयर इतनी ज्यादा वेरी नहीं होती। आप कोई भी फैक्ट्री इंश्योरेंस निकालोगे, लास्ट ईयर अगर 7 लाख प्रीमियम दिया है तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएटेड वैल्यू में, कुछ बिल्डिंग का डेप्रिसिएटेड वैल्यू, थोड़ा प्रीमियम कम भी होएगा तो ज्यादा नहीं होएगा। बट आई हैव फॉर इजी से आई हैव केप्ट इट सेम ऑल 3 इयर्स। ये अगर चेंज हो रहा है तो आपको चेंज करना है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने लिखा है 7, 8, 9 lakhs पर मंथ। तो फर्स्ट ईयर 84 लाख, सेकेंड ईयर 96 लाख, थर्ड ईयर 1.08। ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोजेक्ट फिनेंशियल में टर्मिनोलॉजी ये यूज करते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिगर आया है इसको आपको वर्किंग रिजल्ट्स के शीट में कैरी फॉरवर्ड करना। बाजू में मैंने क्या किया है, ये वर्किंग रिजल्ट शीट्स है और इसका ईयर को थोड़ा चेंज कर देता हूं। बाईस, 23, 24, 24, 25, 25, 26 एंड ये 26, 27, 27, 28, 29। तो ये डेटा जब आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब भी और एक चीज आपको समझना है कि आपको ये वर्किंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली 3 साल का ही बनाना चाहिए। किस केस में 3 साल का बनाना चाहिए, किस केस में 5 साल का बनाना चाहिए, वो थोड़ा समझा देता हूं। ये कुछ नहीं है, आपका जिस टाइम ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा तब तक आपको एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतने साल का बनाना है। सपोज इस केस में अगर ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर 50, सेकेंड ईयर 60, थर्ड ईयर 70, फोर्थ ईयर 80, फिफ्थ ईयर 90, तो आपको 5 साल के लिए बनाना था। अदरवाइज 3 साल इज सफिशिएंट है ना। रेस्ट ऑफ द वर्किंग जो है, कैश फ्लो है, बैलेंस शीट है, वर्किंग रिजल्ट्स है, ये उस पीरियड तक बनाना चाहिए जहां तक टर्म लोन 0 ना हो जाए। तो आपको बैंक भी यही बोलेगा, अगर टर्म लोन उन्होंने 1+6 years दिया है या 7 years दिया है, 8 years दिया है, 10 years दिया है, जितने साल का आपका टर्म लोन, जब टर्म लोन नील हो रहा है उस साल तक आपको प्रोजेक्शंस बाकी सब फिगर का बनाना पड़ेगा, वर्किंग रिजल्ट्स। इन दिस केस वी विल सी इट इज हाउ मच ड्यूरेशन। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो नीचे हमने वर्कआउट किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीट, वहां से ये तीनों साल कॉपी कर लिया। आपको ध्यान रहेगा कि मैंने एजम्पशन ये लिया है कि जब प्रोडक्शन एंड सेल स्टेटमेंट बना रहा था तो मैंने ये लिखा था फर्स्ट ईयर 60, 70, 80 एंड देयर आफ्टर 5% प्राइस ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर। तो हमने क्या किया है, थोड़ा इजी करने के लिए 5% से हमने सेल बढ़ाया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली 5% से बढ़ेगा। तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 5% से बढ़ाई, नीचे देखेंगे सेल्स भी हमने 5% से बढ़ाया। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप देख लेते क्या है हमारा। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला सीट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, कंप्लीट द वर्किंग रिजल्ट, पेज 1, सीट टिल सेल्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां से ले लिया। इनडायरेक्ट ओवरहेड का डिटेल्स हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। ये डायरेक्ट ओवरहेड हमने देख लिया। अभी ये इनडायरेक्ट ओवरहेड 5 लाख
पर मंथ सैलरी का खर्चा आएगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 4 लाख पर मंथ देना है, टेलीफोन, स्टेशनरी, स्टाफ, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 3 lakhs per month and selling and distribution 5% of sale. तो ये 5 लाख के हिसाब से हमने दे दिया, ईयर आफ्टर ईयर 10% इंक्रीमेंट। ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अगेन 4 लाख पर मंथ के हिसाब से दे दिया, टेलीफोन ऑफिस 3 लाख पर मंथ के हिसाब से दे दिया, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सेल्स है उसका 5% हमने कमीशन दे दिया। सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, सेल्स इंटू 5%। ये अगर चेंज होता है 3% होता है, 2% होता है, 1% होता है, या अदर कोई डिटेल्स होता है, उसके हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपने को डालने रहते हैं। तो ये स्टेप नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, टिल एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स। तो हमने एस्टिमेट ऑफ सेल्स तक वर्किंग रिजल्ट्स का शीट कंप्लीट कर लिया। लेट्स सी व्हाट इज माय स्टेप 5, कंप्लीट टर्म लोन चार्ट टू अराइव इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। तो हमने जब मीन्स ऑफ फाइनेंस में लिया था तो हमने लिखा था भाई टर्म लोन कितने साल का रहेगा, कैसे ईएमआई रहेगा। लेट्स सी व्हाट इज माय टर्म लोन रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन सैंक्शन्ड बाय बैंक, जो हमने एज्यूम किया है, डमी डेटा है, देयर मे नॉट बी एक्चुअल डेटा। तो हमने लिखा है, हाँ यहाँ पर आ गया, टर्म लोन इतना होगा एंड इट विल बी repaid in 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट पोस्ट 1 year ऑफ मोरेटोरियम। तो अगर हम 22 में प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, अपन ये मान के चले कि अप्रैल 22 से प्रोजेक्ट का काम चालू कर रहे हैं एंड मार्च 23 तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल 23, तो अपना रीपेमेंट अप्रैल 23 से होना चाहिए। और 22 से 23 अपना टर्म लोन का रीपेमेंट होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन। अगर इंटरेस्ट का मोरेटोरियम जनरली प्रिंसिपल रिपेमेंट का रहता है, इंटरेस्ट यू हैव टू पे ऑन रेगुलर बेसिस, वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है यू शुड फैक्टर इन योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो देख लेते हैं टर्म लोन शीट। यहाँ पर हमने क्या किया है, टर्म लोन शीट बना लिया है क्वार्टरली रिपेमेंट के हिसाब से। ये मेरा टर्म लोन शीट, ये है इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन का अपना ये था कि वन ईयर का मोरेटोरियम एंड उसके बाद 6 साल में रिपेमेंट करेंगे। तो 23-24 जो है वो मेरा मोरेटोरियम ईयर है, तो मैंने कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं किया। हमने एज्यूम इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ 9% लिया हुआ, सपोज इट इज 8%, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का फिगर चेंज हो जाएगा बिकॉज इट्स डायनामिक प्रोजेक्ट फाइनेंशियल। तो ये टर्म लोन का फिगर है, ये 19.94। इफ यू सी मेरा टर्म लोन में ये देखिए 19.94, तो ऑटोमेटिकली पिकअप किया। अगर सपोज इसको चेंज करके वापस हम 75% करते या 70% करते, चलो लैंड एंड बिल्डिंग का 70%, तो मेरा टर्म लोन अमाउंट बढ़ गया है। मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी चेंज हुआ है ऑटोमेटिकली मीन्स ऑफ फाइनेंस में चेंज हो गया है। इसको 6 करोड़ करते तो भी ऊपर ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल चेंज हो गया। नाउ दिस टर्म लोन फिगर्स गो टू टर्म लोन चार्ट। तो आपको दिखाता हूं कि ये मेरा टर्म लोन चार्ट में ये पहुंच गया है, ये इंटरेस्ट है टर्म लोन, ऑटोमेटिकली ये आ गया, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल रिपेमेंट हमने बोला करेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर मोरेटोरियम है, बैंक से हमने मोरेटोरियम पीरियड लिया है। सेकेंड और ईयर ऑनवर्ड्स जितना टर्म लोन लिया है उसको 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 21.3 करोड़ का टर्म लोन प्रोजेक्टेड है, उसको 24 ईयर में 24 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एंड एंड ऑफ द 7th ईयर माय टर्म लोन बिकम्स 0। तो अपने को प्रोजेक्शन जो है 29-30 तक बनानी पड़ेगी। ये हो गया मेरा टर्म लोन चार्ट कंप्लीट। एंड उसके बाद अपन देखते हैं इज देयर एनी अदर स्टेप, क्या है वो देख लेते हैं। टर्म लोन कर लिया हमने, इंटरेस्ट और रिपेमेंट का वर्किंग कर लिया है। कंप्लीट द वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी शीट। मार्जिन मनी विल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, टेक इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अराइव्ड एट वर्किंग कैपिटल लिमिट रिक्वायरमेंट। आपको ध्यान रहेगा स्टेप 1 में हमने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कंटिजेंसी, ये तीनों कंप्लीट करना है एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। तो अब मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल अपने को कैलकुलेशन करना है। तो पहले तो अपन एजम्पशन में देख लेते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है। एजम्पशन में हमने ले लिया प्रोडक्शन डिटेल्स,
ओवरहेड का काम हो गया, इनडायरेक्ट ओवरहेड काम हो गया, इंटरेस्ट चेंज कर देंगे वापस टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल साइकिल, रॉ मटेरियल 1 मंथ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हाफ मंथ, WIP 7 days, डेटर्स 3 months and creditors 2 months. So based on that, now you have to prepare a sheet called margin money for working capital. तो एक्सेल में चले जाते हैं, शीट आपको दिखा देता हूं कैसे बनाते हैं। ये सारे हॉरिजेंटली है ये कैलकुलेशन, ये मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। जनरली बैंक क्या बोलता है कि आपका जो इन्वेंट्री है, आपका जो डेटर्स है, उसका 25% आपको लाना है, 75% वी विल फंड। तो रॉ मटेरियल हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अपने को मालूम है कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। तो हमने रॉ मटेरियल 1 month, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आधा महीना, 1/4 month प्रोसेसिंग का, डेटर्स 2 महीने की जगह इसको 3 महीना करना है, क्या एजम्पशन में 3 महीना लिया है, एंड ट्रेड क्रेडिटर्स 2 महीना ले लिया है। टोटल परचेज के ऊपर अपनी ट्रेड क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल की टोटल नेट करेंट एसेट हमारा है 30 crore। आउट ऑफ दैट 75% विल बी फंडेड बाय बैंक एंड बैलेंस विल बी टू बी ब्रॉट इन बाय प्रोमोटर्स। अगर कोई कारण से मार्जिन मनी चेंज होता है, सपोज कई बार नेशनलाइज्ड बैंक क्या बोलता है, डेटर्स पे हम 40% मार्जिन देंगे, तो आपको जनरली 40% यहाँ करेंगे, ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएगा। देखिए 12.54 हो गया। तो इट्स डायनामिक, जो भी बैंक का सैंक्शन टर्म्स है, नेशनलाइज्ड बैंक ऑब्वियसली बोलते हैं कि आपका डेटर्स में, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर डेटर्स, यू इंक्रीज द मार्जिन। सर्टेन टाइम्स में वर्किंग कैपिटल अपना कोऑपरेटिव बैंक का सैंक्शन देता हूं, दे वर्क ऑन 30% मार्जिन, तो अपने को 30% करना है। ये 30% कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको करना है ये डायनामिक शीट में आप चेंज कर दो ऑटोमेटिकली। अगर वो करंट एसेट पे 30% बोल रहा है तो करंट लायबिलिटीज में भी 30% लेंगे। तो इससे क्या हो गया, अपने को फर्स्ट ईयर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है वो आ गया, बैंक कितना देने वाला है वो आ गया, और कितना आपको मार्जिन मनी लगेगा वो आ गया। तो ये जो मार्जिन मनी आया है, अभी स्टेप 1 में जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बनाया था, ये वर्किंग कैपिटल मार्जिन वहां से पिक होके आ गया है। तो वो अपने को ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में डालना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसल्टेंट को देखता हूं कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, बैंक विल नॉट फंड यू, तो ये लोग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में डालते ही नहीं। बट ये 101% डालना चाहिए। इसलिए डालना चाहिए कि योर क्लाइंट और प्रोमोटर ऑफ दैट प्रोजेक्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट काइंड ऑफ मनी आई हैव टू फर्दर ब्रॉट इन व्हेन वंस कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्शन 1 साल बाद स्टार्ट हो गया, फिर आप बोलेंगे, बैंक तो ये बोलेगा हम तो 75% या 70% फंडिंग करेंगे, तो बैलेंस 30% तो प्रोमोटर को लाना है। तो ही शुड बी अवेयर ऑफ what kind of money he has to further invest during commercial production starting and उसका क्वांटम क्या है। तो प्रोमोटर इज क्लियर कि भाई इतना पैसा मेरे को और लेके आना पड़ेगा जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये इट मस्ट बी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में रहना चाहिए। तो प्रोमोटर विल बी अवेयर ऑफ कि जब हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, बैंक अपना मार्जिन छोड़ के, अगर 25% मार्जिन है तो 75% बैंक देगी, 25% हमको लाना है। एंड प्रोपोर्शनेटली, जनरली बैंक प्रेफर्स प्रोपोर्शनल डिसबर्समेंट। सपोज आपकी स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन 4 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो बैंक बोलेगा कि भाई ठीक है 3 करोड़ हमारे से ले लो, 1 करोड़ आप लेके आओ। तो ये कैलकुलेशन आपके क्लाइंट को देते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि working capital margin should be forming part of cost of project and your client should be aware of when commercial production starts और well trial run start। जब आप फैक्ट्री में रॉ मटेरियल मंगाओगे, लेबर ओवरहेड होगा, सब कुछ होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रहेगी, वर्किंग कैप प्रोसेस की इन्वेंट्री रहेगी, उसमें आपका कितना पैसा ब्लॉक होने वाला है, कितना पैसा बैंक देने वाला है और कितना पैसा आपका लगने वाला है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज कंप्लीट द इंटरेस्ट वर्किंग इन वर्किंग रिजल्ट शीट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वर्किंग रिजल्ट, उसका जो सेल्स तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी हैव टू कंप्लीट सेल्स के नीचे वाले फिगर, एबिटा के इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स वाले फिगर अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमने मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल कर लिया, तो हमको मालूम पड़ गया
कि हमारे को सीसी लिमिट कितनी लगने वाली है। टर्म लोन का ऑलरेडी हमने चार्ट बना लिया भाई, कितना रिपेमेंट होगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल है। तो लेट्स गो टू वर्किंग रिजल्ट शीट। ये वर्किंग रिजल्ट शीट हॉरिजॉन्टली सारे शीट बनाए हुए हैं। आई नो ये मेरा सेल्स का फिगर है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स का फिगर को थोड़ा बढ़ा देते बिकॉज लॉस आ रहा है इस एजम्पशन में, बिकॉज हमने कम कर दिया था वो। ये 55 65 के हिसाब से लॉस आ रहा था। लेट वी मेक 70 80 एंड 90। तो अब देखिए मेरा सेल्स फिगर बढ़ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेल्स माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ टर्म लोन का जो चार्ट है जहां से हमने इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ईयरली, वो फिगर मैंने डाल दिया। एक बार चाहिए तो वेरीफाई कर लेते वहीं से वो फिगर आया क्या। ये मेरा टर्म लोन का चार्ट है, रुपी टर्म लोन। यहाँ इंटरेस्ट 1.71, फिर 1.60, फिर 1.32। लेट्स सी whether same figure has been picked up by my working result sheets or not। तो मेरा ये वर्किंग रिजल्ट शीट आ गया। यहाँ देखिए टर्म लोन का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर दिया गया। एंड ईयर आफ्टर ईयर, लास्ट ईयर तो कोई टर्म लोन यूज नहीं है तो 0 इंटरेस्ट है। वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो हमने मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल किया है और हमने एक एजम्पशन में लिखा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल, थोड़ा सा नीचे देख लेते क्या लिखा है। ये रॉ मटेरियल है, वर्किंग कैपिटल एट 8% एंड एवरेज यूटिलाइजेशन इज 90%। कारण सपोज आपने 10 करोड़ का सीसी लिमिट लिया है, कोई जरूरी नहीं कि हर समय आप 10 करोड़ फुल्ली यूटिलाइज करोगे। कभी 10 करोड़ भी यूटिलाइज करोगे, कभी 7 करोड़ भी करोगे, कभी 8 करोड़ भी करोगे। तो एक एजम्पशन लेना चाहिए, जनरली 80-90% शुड बी योर एवरेज यूटिलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द बैंक पुट ए सैंक्शन कंडीशन, क्या आपका वर्किंग कैपिटल सैंक्शन लिमिट से अगर 70% से नीचे एवरेज यूटिलाइजेशन हुआ तो यू हैव टू पे प्री पेमेंट पेनल्टी। कारण बैंक ये चाहती है कि आपने 10 करोड़ का सैंक्शन लिया है तो आप 10 करोड़ का 10 करोड़ ही यूज करो, एंड दे विल सी दैट कि भाई एवरेज यूटिलाइजेशन 80-90% होना चाहिए, नहीं तो बैंक का नुकसान है। उसको आपको सैंक्शन लिमिट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और आप पैसा नहीं कर रहे हो तो बैंक इंटरेस्ट कहां से कमाएगी। और उसके सैंक्शन लिमिट के बेसिस पे उसके वेरियस प्रोविजन उसको वर्कआउट करना पड़ता है। तो अपने को सिंपल है, तो हमने मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का जो शीट बनाया था आपको दिखा देता हूं एक बार। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी, ये मेरा मार्जिन मनी वाली शीट। इसमें ये मेरा टोटल प्रोमोटर्स फंडिंग कितना होगा और कितना बैंक लोन देगा, तो 23 करोड़ रुपया बैंक लोन देगा। तो इसका मैंने सिंपल किया है, फर्स्ट ईयर 23 करोड़ रुपया बैंक लोन देगा, तो 23 करोड़ के ऊपर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर दिया, 23 पे 8% और 90% एवरेज यूटिलाइजेशन के हिसाब से मैंने तीनों साल निकाल लिए कि मेरा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के हिसाब से प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट फिगर क्या हो। तो हमने ये इंटरेस्ट वाला फिगर भी कर लिया है। नेक्स्ट सी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। 8 नंबर है कंप्लीट डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। डेप्रिसिएशन में 2 चीज ध्यान रखने वाली है। एक, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना रहे हो तो देयर आर 2 डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट, वन इज एज पर कंपनीज एक्ट, वन इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो शेयर कैपिटल की जगह पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एक ही कैलकुलेशन आने वाला है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सिंस इट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई हैव वर्कड आउट डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट अपन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सिंपल है, ये आज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन इफ यू आर कन्वेंशनल प्रैक्टिस, डे इन डे आउट आप ये सब चीजें बना रहे। ये मैंने रेट हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकता है, मेरे जानकारी में जो रेट मेरे को मिली वो रेट मैंने पिकअप कर लिया। ये WDV बेसिस पे हमने क्या किया, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, बिल्डिंग पे 3.34,
प्लांट एंड मशीनरी में 10.34, मिसलेनियस फिक्स एसेट में 2.24। ये कहाँ से आया? तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में अपने पास था कितना लैंड में, कितना बिल्डिंग में, कितना प्लांट एंड मशीनरी में, कितना मिसलेनियस फिक्स एसेट में, और उसके हिसाब से हमने कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन निकाल लिया 1.76 करोड़ पर एनम। अभी आप हर साल के लिए डब्ल्यूडीपी के हिसाब से डेप्रिसिएशन बना सकते हो, बट अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर अवेयर ऑफ फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया है, सेकेंड ईयर डब्ल्यूडीपी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जनरली 90 to 95% होता है। तो आपको डिटेल डेप्रिसिएशन की वर्किंग करने की जरूरत नहीं। सपोज आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो जहां 15-20 हजार का फीस है, तो इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हाउ बिग डीपीआर यू आर प्रिपेयरिंग। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वर्क आउट डेप्रिसिएशन फॉर ऑल टर्म लोन पीरियड का। अगर छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो कोई जरूरत नहीं, आप एजम्पशन डाल सकते हो, ईयर ऑन ईयर आप 90 या 95% ले सकते हो। तो ये डेप्रिसिएशन का जो 1.76 फिगर है, इट शुड गो टू माय वर्किंग रिजल्ट, सी वेदर इट हैज गॉन और नॉट। ये मेरा डेप्रिसिएशन का फिगर 1.76 आ गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, 95% से मल्टीप्लाई करके ईयर आफ्टर ईयर डब्ल्यूडीपी निकाला है। देन ये आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आई गॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने को राइट ऑफ करना है, 1 करोड़ का आपको ध्यान में होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, उसको हर 5 साल में जनरल इनकम टैक्स के हिसाब से वही अलाउड है, तो हमने 5 साल में 20-20 लाख करके राइट ऑफ कर दिया। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन इतना सीट बड़ा हो रहा था तो मैंने कंटिन्यू किया सीट नंबर 2, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया। देन अपने को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है, इसका सीट अलग से बना सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकते हैं। मैंने इस केस में अलग से सीट बनाई है बिकॉज कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन अलग है, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अलग है। पहले अपन देख लेते हैं इनकम टैक्स कैसे बनाते हैं, वो तो बहुत सिंपल है, आप रेगुलर बनाते हो। तो ये मेरा इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है, इसमें मैंने हर साल के लिए बनाया है। बिल्डिंग पे 10% मिलता है, प्लांट एंड मशीन में 15%, मिसलेनियस फिक्स एसेट में 15%। अगर मिसलेनियस फिक्स एसेट में कंप्यूटर है तो एक कॉलम और बढ़ा दो बिकॉज देन देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ 40%। तो बेस्ड ऑन दैट ईयर आफ्टर ईयर मेरे को मालूम पड़ गया इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इज सिंपल, स्टेप में भी देख लेता हूं क्या है। कंपनी इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, नाउ कंप्लीट इनकम टैक्स वर्किंग। तो इनकम टैक्स वर्किंग में चले जाते हैं अपन, कैसे इनकम टैक्स वर्किंग बनाएंगे। ये इनकम टैक्स एक्ट, अपने वर्किंग रिजल्ट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कर दिया। तो देयर इज लॉस, नेगेटिव लॉस, बुक में प्रॉफिट है बट एज पर इनकम टैक्स वी हैव ए लॉस, तो देयर विल बी लिस्ट इनकम टैक्स प्रोविजन 0 ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। देखिए 99 ना क्या कवर हुआ, सेकेंड ईयर भी कैरी फॉरवर्ड है एंड धीरे धीरे ये कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो एक कैलकुलेशन हमने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं बनाया, वो है डेफर्ड टैक्स। इफ यू विश यू कैन डू दैट डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन, बट बैंकिंग सैंक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है। दीज आर पिक्चर मोर क्लियर टू डिपार्टमेंट की भाई, मतलब बैंकिंग लोन डिपार्टमेंट कि भाई ठीक है लॉस है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव नॉट प्रोवाइडेड फॉर इनकम टैक्स, बट ये सीट आपने बना के रखा है। लेट्स नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, लेट्स सी। नाउ कंप्लीट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, take source of funds from means of finance, profit before taxation with interest added back, depreciation and PP expenses, preliminary and pre-operative expenses from working results, and working capital borrowing from working capital margin sheet। हमको कैश फ्लो बनाना है, सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपको मालूम है क्या क्या आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स ऑफ फाइनेंस से आपको मालूम है इनफ्लो क्या हो रहा है, प्लस आपकी जो कैश प्रॉफिट है वो भी आपका इनफ्लो के हिसाब से काम करेगा। तो कैश फ्लो अपन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। लेट गो टू द कैश फ्लो शीट। हमने सिंपल किया है, देखिए ये मीन्स ऑफ फाइनेंस था, जो सोर्स ऑफ कैपिटल से हमने उठाया, शेयर कैपिटल कितना लगेगा, टर्म लोन कितना, क्वासी इक्विटी कितना। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसको हम वर्किंग रिजल्ट्स बोलते हैं, वहां मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन विथ इंटरेस्ट एडेड बैक आ गया। ये मेरा मार्जिन मनी फॉर जो वर्किंग कैपिटल निकाला था उसमें हमको रिक्वायरमेंट आई थी 23 करोड़ की सीसी लिमिट, तो 23 करोड़ का इनफ्लो पकड़ लिया।
डेप्रिसिएशन, बिकॉज कैश फ्लो बना रहे हैं तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपको सोर्स ऑफ फंड में एड बैक करना है, तो डेप्रिसिएशन कर लिया, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको भी ले लिया। एंड नाउ डिस्पोजिशन ऑफ फंड सिंपल है, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपने कितना फिक्स एसेट लगाया, कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगाया, कितना इंक्रीज इन नेट करेंट एसेट हुआ, मार्जिन मनी में आपको मालूम है कि टोटल वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है और नेट करंट एसेट कितना है, उसमें से बैंक कितना दे रहा है और कितना पैसा आप आउटफ्लो होने वाला है। तो बैंक ये दिया 23 करोड़, आपका आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो और टोटल इन्वेस्टमेंट इन नेट करंट एसेट इज 38.60, दैट इज कमिंग अंडर डिस्पोजिशन ऑफ फंड। देन आपको फर्स्ट ईयर कोई टर्म लोन रिपेमेंट नहीं करना है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको टर्म लोन रिपेमेंट करना है, तो मैंने ये लगा दिया है टर्म लोन रिपेमेंट। एंड देन टर्म लोन का इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ इंटरेस्ट एड बैक किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो हमने अलग से ले लिया इंटरेस्ट एड बैक। एंड बेस्ड ऑन दैट हमने एवरी ईयर का ईयर एंडिंग कैश बैलेंस निकाल दिया। यहाँ नेगेटिव आ रहा है बिकॉज आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने काफी कुछ चेंज किया, मार्जिन मनी वगैरह, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इसको एक तो पॉजिटिव पहले कर ही देते हैं, तो या तो कुछ छेड़छाड़ करते हैं अपन, लेट्स सी प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम कर देते, लैंड एंड साइट डेवलपमेंट 4 करोड़ करते, इसको 8 करते हैं और इसको 10 करते, तो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम हो गया, तो मेरा लोन रिक्वायरमेंट भी कम हो गया, ऑटोमेटिकली सब टैली हो गया है। और सेलिंग प्राइस को भी हम 25 रुपए से और बढ़ा देते, सो दैट देयर इज 500-600 रहने दो इसको, आई थिंक देयर इज नो लॉस नाउ, ठीक है, एवरेज डीएसआर भी ठीक है। तो हमने कैश फ्लो में जाना है अपने को, तो देखिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, जो सोर्स ऑफ फंड है वो मींस ऑफ फाइनेंस से आ गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश प्रॉफिट पोर्शन है वो वर्किंग रिजल्ट से आ गया है, वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी से कितना अपने को लोन सीसी लिमिट सैंक्शन मिलेगा उतना ले लिया इनफ्लो में, एंड जो मींस ऑफ फाइनेंस मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वहां से आउटफ्लो डिसाइड हो गया, एंड जो बेस्ड ऑन दैट जो क्लोजिंग बैलेंस आया है दैट शुड गो टू वर्किंग कैपिटल कैश बैलेंस इन हैंड। तो बेस्ड ऑन दैट थोड़ा सा चेंज मैं और करता हूं, ये रिपेमेंट जो है अपने 6 साल का रखा है बट नेगेटिव आ रहा है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि इसको 7 साल अपने को करना पड़ेगा। तो लेट वी डू दैट बाय गोइंग टू रिपेमेंट शीट। तो ये मेरा इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट है, मैंने 6 साल का किया है, तो आपको ध्यान में आ गया कि भाई 6 साल में तो अपना इनफ कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको अपन 28 महीने का कर देते, 7 साल का कर देते, तो ऑटोमेटिकली मेरा रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कम हो गया है, तो अब मेरा कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने बोला था कि दीज आर मल्टीपर्पज, एंड मल्टीपर्पज इसलिए कि जब सपोज आपके घर का कोई आदमी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई किसी ने कंसल्टेंट ने बोला कि भाई चलो सैनिटाइजर बनाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, एक लिक्विड सैनिटाइजर बनाओ, एक सोप फॉर्म में बनाओ, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, इसका इतना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, मींस ऑफ फाइनेंस है, तो आपको इस तरह का एक्सेल शीट में डालेंगे। इस तरह से जब डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट कितना वायबल है कितना नहीं वायबल। तो इसलिए हमने को जैसे ही मालूम पड़ा भाई कैश नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम 6 साल में तो रिपेमेंट नहीं कर सकते, तो वी हैव टू अकॉर्डिंगली आस्क बैंक कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ लोन। जबरदस्ती प्रोजेक्शंस को बढ़ा चढ़ा के आप बैंक से लोन लेंगे, बाद में अगर रिपेमेंट नहीं हो पाया तो आपका अकाउंट एनपी होगा, आपका नाम खराब होगा, आपका सिविल रिपोर्ट खराब होगा, एवरीथिंग विल गो। सो इट इज बेटर व्हाइल सबमिटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बैंक यू डू दिस काइंड ऑफ वर्किंग्स, अप्रेजल करके देख लो, अगर वो फिट नहीं होता है 6 साल में, जैसे मैंने 7 साल किया, आपको 7 साल करने पड़ेंगे। अभी देखो 7 साल करते ही मेरा कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं जा रहा है, दैट मीन्स आई कैन पे दे। अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस शीट। पीपीटी में क्या बोलता है वो देख लेते हैं। कंप्लीट द बैलेंस शीट, सिंपल है, लायबिलिटी साइड में कहां से क्या आएगा मैंने ये सब मेंशन करके रखा है। ये पीपीटी आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस, आई विल बी शेयरिंग माय एक्सेल शीट,
with Pune branch, and then Pune branch in terms will share with you all guys. तो ये कैश फ्लो के बाद बैलेंस शीट बनानी है. Again, very simple, day in day out you are preparing all balance sheet in your conventional practice. जो मैंने शेयर कैपिटल मीन्स ऑफ फाइनेंस से लिया था, अनसिक्योर्ड लोन मीन्स ऑफ फाइनेंस में था, रिजर्व एंड सरप्लस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज माय रिजर्व एंड सरप्लस. मुझे मालूम है मेरे को कितना टर्म लोन अप्लाई किया था, टर्म लोन कितना मिला है, एंड ईयर आफ्टर ईयर पोस्ट रिपेमेंट कितना मेरी आउटस्टैंडिंग रहेगी, एंड ये मेरा वर्किंग कैपिटल जो मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल से लिया था. अगेन सिंडिकेटर्स कितना रहेगा, तो हमने वर्कआउट किया था, हमको 2 महीने की उधारी मिलेगी, तो टोटल परचेज का 2 महीने का सिंडिकेटर्स पकड़ लिया. देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अगेन कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है फिक्स एसेट में, लेस डिप्रिसिएशन, बिकॉज कैश फ्लो में आपने ऑलरेडी नॉन कैश एक्सपेंसेस करके कैश बैलेंस बढ़ा रखा है. यहाँ आपको अलग से नेट ब्लॉक ही लेना है, जो जनरली बैलेंस शीट का रूल भी यही है. करंट एसेट आपका कितना इन्वेंट्री रहेगा, 3 प्रकार की इन्वेंट्री रहेगी, हमने सम कर दिया है. रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड. 3 महीने की आपकी उधारी देनी है, तो सेल्स के हिसाब से आपने निकाल दिया. और कैश फ्लो में आपका कैश एंड बैंक बैलेंस कितना रहेगा ईयर एंड में मालूम पड़ गया. और आफ्टर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, व्हाट शुड बी माय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, वो ले लिया. आप देखिए मेरा बैलेंस शीट टैली है. हमने कितनी बार कितना कुछ चेंज किया, बट ओवरऑल बैलेंस शीट इज टैलीड. वी विल डू सर्टेन मोर चेंजेस. Before that, let me complete entire project sheet. See my step, complete the DSCR. ये one of the important criteria. कभी भी आप टर्म लोन का प्रपोजल डालोगे, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, तो बैंक ये पूछेगा भाई आपका DSCR क्या बन रहा है. तो एक DSCR बना लेते, सिंपल है. ये DSCR हमने बाजू में बना रखा है. ये मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो. ये कैसे बनता है, जितना मेरा कैश प्रॉफिट है, प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन. फर्स्ट ईयर आपको ध्यान में होगा देयर इज नो रिपेमेंट, एंड ये इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को ऐड बैक किया, तो कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, उससे अपने को DSCR बनता है. तो ये मेरा DSCR बन गया है. फर्स्ट ईयर सिंस देयर इज नो रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन 2.79, और लास्ट ईयर कोई रिपेमेंट नहीं है, एवरेज DSCR 1.67. नाउ आपके मन में सवाल आ सकता है, व्हाट शुड बी द आइडियल DSCR. आइडियल DSCR ये होना चाहिए, आइडियली बैंक विल प्रेफर एनीथिंग बिटवीन 1.5 to 2, एंड बैंक विल एवरेज DSCR बैंक विल ऑलवेज आस्क कि भाई ये 1.5 to 2 के बीच में होना चाहिए, सो दैट दे आर ऑल्सो श्योर कि भाई DSCR अगर 2% है, जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे अगर आप 50% भी परफॉर्मेंस करोगे, स्टिल यू विल बी एबल टू रिपे देम. दैट्स व्हाई बैंक प्रेफर्स 1.5 से 2%, 1.5 से 2 DSCR रेशियो. एंड एनी इंडिविजुअल ईयर में बैंक प्रेफर करती है कि 1.25 DSCR रहना चाहिए, एटलीस्ट 1.10 तो रहना ही चाहिए. बिकॉज अगर 1 से नीचे है, मतलब योर कैश फ्लो इज नॉट सपोर्टिंग टू मीट यू योर सर्विस ऑब्लिगेशन, बैंक का जो ऑब्लिगेशन है. देखिए इस केस में सेकेंड ईयर थोड़ा सा मेरा 1.17 आया DSCR रेशियो. 1.25 आना चाहिए आइडियली, बट इवन 1.17 इज एक्सेप्टेबल टू बैंक. बट अगर कोई कारण से, जैसे मेरे पास आया था जब ओरिजिनली 6 साल का रिपेमेंट बनाया था, तो नेगेटिव कैश बैलेंस आ रहा था. अगर 6 साल का रिपेमेंट रखूंगा तो मेरा DSCR देखिए वो नेगेटिव आया, तो यहाँ 1 से नीचे आएगा. तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक का लोन सैंक्शन कराने के लिए हम प्रोजेक्शन बढ़ा के देवे, आपकी क्रेडिटेबिलिटी भी दांव में आता है. दो यू डोंट रिक्वायर टू साइन एनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बट बैंक ये जरूर पूछता है एज ए कंसल्टेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर टेकिंग वन क्लाइंट ऑफ योर्स टू बैंक. अगर वो क्लाइंट डिफॉल्ट करता है तो बाजार में बैंकिंग सर्कल में आपका नाम खराब होता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट इन्फ्लेट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू फिट इनटू बैंक स्कीम. ऐसा मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं. तो आई हैव डन वन सिंडिकेशन ऑफ कॉलेज, जहां ओरिजिनल जो कंसल्टेंट था, जब ये कॉलेज डाले थे, उन्होंने 7 साल का रिपेमेंट लिया था, एंड थोड़ा प्रोजेक्ट इन्फ्लेट करके दिखा दिया, कारण बैंक का रिक्वायरमेंट ये था हम 7 साल का ही रिपेमेंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे. तो
कंसल्टेंट ने क्या किया भाई, थोड़ा इन्फ्लेट करके दे दो फिगर, तो पेपर में दिख गया भाई, अल्टीमेटली इट्स ए प्रोजेक्टेड फिगर, प्रोजेक्ट में दिख गया, हाँ सफिशिएंट कैश फ्लो है, रिपेमेंट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, बैंक ने सैंक्शन कर दिया, और तीसरे साल आके बैंक का अकाउंट एनपीए के कगार पे खड़ा हो गया, बैंक को अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा। तो वंस रिस्ट्रक्चर, तो आपको मालूम है कोई दूसरा बैंक टेक ओवर करेगा नहीं, इंटरेस्ट में आपको कंसेशन मिलेगा नहीं, बिकॉज बैंक इज स्ट्रक्चर्ड, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, तो कोई दूसरा बैंक भी टेक ओवर करेगा नहीं। तो ये सब चीजें बैंक के रिक्वायरमेंट फिट करने के बजाय यू शुड डू सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, यू शुड अप्रेज द प्रोजेक्ट, और अगर लगता है कि भाई 7 साल में रिपेमेंट नहीं होने वाला एक्चुअल प्रोजेक्शन में, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम ही ऐसे बैंक के पास जाइए जो आपका 10 साल का ड्यूरेशन देवे या 15 साल का ड्यूरेशन देवे, जो भी ड्यूरेशन लगेगा, जनरली 10 साल तक बहुत सारी बैंक के, वो टेक्सटाइल प्रोजेक्ट में, स्कूल प्रोजेक्ट में, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में, कॉलेज के प्रोजेक्ट में जनरली 10 ईयर्स रिपेमेंट देते ही हैं। कुछ कुछ टेक्सटाइल सेक्टर में, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तो इवन कॉलेजेस में, स्कूल में, मैं तो बोलता हूं कि आप 2 से 3 साल का मोरेटोरियम लीजिए, बिकॉज आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी 3rd ईयर के बाद ही आता है। इसलिए कैश फ्लो के हिसाब से, आपके प्रोजेक्टेड एक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से आपको रिपेमेंट ऑब्लिगेशन डिसाइड करना चाहिए। और एक चीज हो सकती है, सपोज आपको मालूम है कि भाई 2nd 3rd ईयर में, 1st 2nd 3rd ईयर में मेरा कैश फ्लो कम है, बट 4th ईयर ऑनवर्ड्स बम्पर कैश फ्लो है, तो आपको क्या करना चाहिए, यू कैन रीशेड्यूल योर बैलेंस रिपेमेंट कैटेगरी, इंस्टेड ऑफ इक्वल ईएमआई आप अपना शेड्यूल बैलूनिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे साल जाएगा आप ज्यादा से ज्यादा लोन रिपेमेंट करोगे। शुरुआती दौरों में सपोज लोन का 10%, फिर 15%, या पहला 3 साल 10% दिया, और उसके बाद आपने 25-20-20-20 दिया, और लास्ट में जो बचा हुआ वो दे दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना चाहिए, जस्ट टू फिट इनटू बैंक स्कीम यू डोंट प्ले विद दिस नंबर। एक्चुअल नंबर पे आप अप्रेजल करोगे और आपके प्रोमोटर्स को बोलोगे भाई बैंक कुछ भी बोले, आपको इतने साल का ही लोन चाहिए, बेटर है आप उस बैंक के पास जाओ जो इतने साल का लोन दे सकता है, या फिर आप प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, बैंक लोन थोड़ा कम लो, सो दैट यू डोंट डिफॉल्ट इन फ्यूचर। दिस विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर क्लाइंट एंड दिस विल क्रिएट गुडविल फॉर यू इन बैंकिंग सेक्टर। तो ये डीएसआर के बारे में हो गया। और क्या क्या बनानी है वो मैं पीपीटी में देख लेता हूं, देन विल सी हाउ डायनामिक। ओह, डीएसआर बनाने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, 1-2 सीट और बनानी चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या हमने एडिशनल बनाया। ये डेट सर्विस कवरेज हो गया, एक मैंने बनाया है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके प्रमोटर के लिए भी। अगर आपके फैमिली मेंबर भी प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको ध्यान में रहना चाहिए, बीईपी सेल्स क्या फिगर है, इतना % तो हमको अचीव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज योर प्रोजेक्ट मे नॉट बी वायबल। तो इस केस में अच्छा, बीईपी जनरली कब होता है, 3rd ईयर का करना पड़ता है, बिकॉज 3rd ईयर में आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो हमने क्या किया, 3rd ईयर का सेल्स फिगर ले लिया, ये मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस है, एंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो आ गया, देन यू नो योर फिक्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डेप्रिसिएशन, ये आपका बिजनेस कम हो ज्यादा हो ये खर्चा तो होने ही वाला है, तो इतना आपका फिक्स एक्सपेंसेस है, एंड ब्रेक इवन का सेल आ गया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया तो कैश बीईपी वैल्यू आ गया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, एंड ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो दिस इज ऑन द हायर साइड, जनरली ब्रेक इवन पॉइंट 50-55% रहा तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज देन यू नो कि अगर जो आपने एस्टिमेट किया है उससे अगर हम आधा भी परफॉर्म करें, 50% भी अचीव करें, स्टिल वी विल बी इन ब्रेक इवन पॉइंट। सो इट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर बैंक, तो मांगेगा ही मांगेगा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, बट आपके क्लाइंट के लिए या आपके फैमिली ने कोई बिजनेस डाला है तो एडवांस में आपको अगर मालूम है आपका ब्रेक इवन सेल्स क्या है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। ये सपोज 80% हो गया या 90% हो गया, और ब्लैक स्वान इवेंट या पेंडेमिक आया, अभी जिनके पेंडेमिक के दौरान किसी ने कॉस्ट ऑफ कोई प्रोजेक्ट डाला है और उसका ब्रेक इवन अगर 70 या 80% था, 101% दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन हिज टर्म लोन, बिकॉज उतना परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन के हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट 50% तो होना ही चाहिए, सो दैट यू नो एट 50% कैपेसिटी
प्रोजेक्टेड सेल्स के 50% पे भी रहेंगे तो विल नॉट मेक एनी प्रॉफिट बट आइदर विल नॉट इनकर एनी लॉस। और एक सीट एडिशनल जो बनानी चाहिए ये है समरी फाइनेंशियल, कि भाई आपके 3 साल में क्या क्या प्रोजेक्टेड फिगर दिख रहा है। तो ये इसलिए बनाना चाहिए कि जनरली एज ए कंसल्टेंट सपोज जीएम लेवल की कमिटी है या जीएम का सैंक्शनिंग पावर है 20 करोड़ रुपया, तो जीएम को पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दोगे ना तो वो उसके टेबल भी पड़ा रहेगा, वो पढ़ेगा नहीं, उसके जूनियर को देगा, उसका फीडबैक नहीं आएगा। इसलिए कभी भी आप सीनियर लेवल को देते हो, इनफॉर्मली अगर देते हो, तो एक हम क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं, भाई ये प्रोमोटर है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ये मीन्स ऑफ फाइनेंस है, ये प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, ये मार्केटिंग है, और इसका प्रोजेक्टेड समरी फिनेंशियल्स आ जाएगा। तो जो सीनियर लेवल का आदमी है बैंक में, जीएम है या वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, वो समरी देखेगा और उसको एट ए ग्लांस मालूम पड़ जाएगा भाई इसका ब्रेक इवन ये है, ये इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, इस तरह का सेल्स आएगा, और उसको लगेगा कि यस हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट में फिक्स हो सकता है, तो अपने जूनियर लेवल को बोल देगा भाई उसको डीपीआर सबमिट करो और आपका अप्रेजल करा लो। अगर उसको समरी फाइनेंशियल में उसको मालूम पड़ गया है भाई ये प्रोजेक्ट, सपोज आपने 7 साल का रिपेमेंट रखा है और या 8 साल का रखा है और बैंक को अलाउ ही नहीं है 7 साल के ऊपर करना, और आपको लग रहा है कि भी 8 साल बिना हमारा रिपेमेंट ऑब्लिगेशन डीएससीआर नहीं बैठ रहा है, तो आप बैंक का जीएम क्या देखेगा, भाई ये तो हमारे स्कीम में फिट नहीं होता है, बेटर यू अप्रोच अदर बैंक। तो यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑफ सीनियर ऑफिशियल ऑफ बैंक एंड अननेसेसरी आपका डिले नहीं होता है। आप अगर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारा का सारा बना के बैंक के पास ले जाओगे, वो जीएम आपके जूनियर को देगा, वो कब असेसमेंट करेगा। बहुत बार आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बैंक सब पेपर एक बार सब कुछ ले लिया, एवरीथिंग ले लिया, और आपको 1 महीना 2 महीने बाद बैंक बोलता है नहीं यार हमारे तो ये हमारे इसमें थ्रू नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि ये समरी फाइनेंशियल्स बना के 2 पेज का 3 पेज का नोट बना के सीनियर लेवल को पहले दिखा दो। आप तो एक साथ 2-3 बैंकों को दिखा सकते हो, जो बैंक आपको इंटरेस्ट दिखाएगा उस तरह के प्रोजेक्ट में लोन देने के लिए उस बैंक के पास आपको चले जाना है, सिंपल है। तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, नॉट वेस्टिंग योर क्लाइंट्स टाइम, नॉट वेस्टिंग इवन बैंकर्स टाइम। तो ये समरी फाइनेंशियल से एक बनाना चाहिए। दिस इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट दिस इज एडिशन फ्रॉम माय साइड। इस तरह की समरी फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव समरी बनानी चाहिए। बाय दिस वी हैव completed live preparation of project report. I have claimed before starting of this session कि my project financials are dynamic. अभी कुछ चेंज करके देखेंगे whether this get automatically changed or not. पहले एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर बैलेंस शीट टैली है, कुछ भी चेंज करो बैलेंस शीट फिर भी टैली है, इसका मतलब योर वर्किंग इज परफेक्ट। अगर टैली नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, तो इस केस में टैली है। नाउ से अपन प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट है, हमने एज्यूम किया 24 लाख 18 लाख, लेट से दोनों 21 लाख पे, तो ये 21 लाख, ये भी 21 लाख, तो आपका सेल्स फिगर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ज्यादा हो गया। अब नाउ सी आपकी बैलेंस शीट टैली है क्या? यस, देयर इज नो डिफरेंस, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। नाउ से एज्यूम करें 70-80 के जगह से 75%, देखिए 70% में कितना सेल्स था 161, अपन 75% करते हैं, 85% करते हैं, 95% करते हैं, सेल्स फिगर चेंज हो गया। आपके सारे चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। और ये देखिए बैलेंस शीट इज अगेन टैली, मैंने रेड मार्क करके उसको येलो ये कर दिया सो दैट एवरी टाइम। नाउ से कुछ और चेंज करके देखते हैं कि भाई अपने 30% मार्जिन पे वर्कआउट किया है, इसको वापस चेंज कर देते हैं, इसको 25% मार्जिन कर देते हैं, सबको डेटर्स को भी 25% करते हैं। तो देखते हैं अपना टैली होता है कि नहीं बैलेंस शीट। लेट्स सी बैलेंस शीट इज टैली और यस इट इज टैली। और भी कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। जनरली एक जब अप्रेजल करते हैं, कई बार हम 5 साल से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले नेशनलाइज्ड बैंक टेंटेटिव
टीवी रिपोर्ट बनाने के लिए हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एम्पैनल करती थी। आई वाज आल्सो एम्पैनल्ड इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, एम्पैनल्ड विद एसबीआई। तो हम क्या करते थे, इस तरह का उनका जो डेटा आता था, कोई क्लाइंट ने अप्रोच किया पर्टिकुलरली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो उसको बोलते भाई इसका टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कौन बना सकता है, तो हम इस तरह के इसमें करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, एक एनालिसिस करते थे, सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसमें क्या करते थे कि भाई चलो 5% से प्राइस को, सेलिंग प्राइस को कम करते या 5% से कॉस्टिंग को बढ़ा देते, तो मेरा प्रोजेक्ट में बाकी सब रेशियो कहाँ आ रहा है, डीएसीआर कहाँ आ रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस सही आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से एनालिसिस करने के लिए भी इस तरह का डायनामिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपने बना लिया, तो आप इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट, मैंने अभी कुछ चेंजेस किया, सपोज यहाँ मैं प्राइस पॉइंट चेंज करता हूँ कि भाई 2% से सेलिंग प्राइस कम कर देता, भाई 500 नहीं मिलेगा, आपने अजम किया ये 475 ही मिलेगा और ये 575 मिलेगा, तो आपका बाकी सब रेशियो सही हो रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट तो टैली होगा। देखो इसमें कंटिन्यूअसली कैश फ्लो में दिख रहा है नेगेटिव कैश बैलेंस। तो प्रोजेक्ट इज 5% भी 19-20 हो गया तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। तो आप जब इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बैंक को बना के दे रहे हो, मैं बोला था हायर ब्रेक इवन में जनरली इस तरह की प्रॉब्लम आता है, तो आपको बैंक को रिकमेंडेशन डालना है कि इफ selling price because of competition they don't realize what they are estimating, then this project becomes unviable। तो आपके इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट का बढ़िया इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट आपके बैंक के पास जाएगा और बैंक विल अप्रिशिएट योर वैल्यू एडिशन। बैंक को ये अप्रिशिएट इसलिए करेगा कि आपने उनको फ्यूचर एनपीए से बचा दिया। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए भी इस तरह की डायनामिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, एक टर्म्स है सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो आपको करना चाहिए। उसमें जो की फैक्टर है, अगर रॉ मटेरियल प्राइस को 2% बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस को 2% कम कर दो, दोनों एक साथ कर दो, अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी इज की फैक्टर, इन सर्टेन इंडस्ट्री लेबर इज की फैक्टर, सपोज आप लेदर गुड्स बना रहे हो, लेदर में लेबर की फैक्टर है, आपने एज्यूम किया भाई 10,000 रुपए में लेबर मिल जाएगा, लेबर अगर की फैक्टर है उसको एज्यूम करो भाई 10,000 में नहीं मिला, पैंडेमिक हो गए, लोग भाग गए, गांव से नहीं आ रहा है, 10,000 की जगह आपको 12,000 पेमेंट करना पड़ेगा या 13,000 पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपकी प्रोजेक्ट की दिशा और दशा क्या रहेगी। इस तरह की एनालिसिस करके अगर बैंक को इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हो, तो योर बैंकर विल अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन, योर वैल्यू एडिशन, एंड जनरली बैंक क्लाइंट से रिकवर करके आपको फीस देता है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने में भी अच्छा खासा फीस मिलता है। जनरली यू गेट 50,000 to 1 lakh रुपीज डिपेंडिंग ऑन फिगर ऑफ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 50 से 70,000 आराम से मिलता है। एंड आपको वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने में 2 से 3 दिन से ज्यादा लगेगा नहीं, बिकॉज दिस डेटा will be provided by that banker's client and you have to just put in your Excel sheet, do this kind of analysis। कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में आपको गूगल करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट श्योरली यू कैन एबल टू सबमिट गुड क्वालिटी इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट टू बैंक, एंड बैंक in terms will give you a good fees। By this I am ending this session। If there is any question, if there are any question, I am happy to reply you। In case I couldn't able to reply you, then I will take time, definitely I will get back to you with proper reply। Now third thing, many of you have asked whether this Excel sheet, PPT और जो डमी डेटा हमने वर्ड फाइल में बनाया, whether it will be shared with participant or not, I will send across to Pune branch in their email ID, in terms they will share with their members। In case of any queries, please either it should rotate through Pranav, or you can directly ask, or you can put in your chat box। Pranav, आप थोड़ा देख लो क्वेश्चन आंसर सेशन में। Yes, sir. I'll quickly take the question answers. So the first question is how to give effect of ITC available on plant and machinery, where the cost of project include gross amount of net of ITC। देखिए ऐसा होता है, आईटीसी जीएसटी का मैटर है। बैंक इज नॉट कंसर्न विथ आपको कितना आईटीसी मिला नहीं मिला। बैंक ये बोलेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का ओवरऑल कॉस्ट कितना है।
जितना आपका प्लांट एंड मशीनरी का इनवॉइस आया है इंक्लूडिंग जीएसटी, अगर बैंक ने बोला है 75% दे विल सैंक्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी क्रेडिट आपकी जो आईटीसी क्रेडिट बिकॉज 50% आई थिंक इट इज अलाउड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 50% ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैपेक्स में आप ले सकते हो। आईटीसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, बैंकर इज नॉट कंसर्न, आईटीसी का कोई इफेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपको जितना मशीन का कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी शुड बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एंड उसी के जो परसेंटेज बैंक सैंक्शन किया उतना लोन आपको मिलेगा। Okay. So the second question is, sales in working results is exclusive of GST or inclusive of GST? And debtors, again, in continuation to it, how to give effect because it affects working capital margin? नहीं, The मैं debtors. बताता हूँ, जनरली सेल्स प्राइस शुड बी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। क्यों इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी? अगर आपको जीएसटी ऐड करके इसलिए देना चाहिए कि आप अलग से मेंशन भी कर सकते हो, आपका जो प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट से जो सेलिंग प्राइस आया, जो सेल्स आया, यू कैन ऐड जीएसटी। बिकॉज क्या हो रहा है कि आप जीएसटी लगा के माल बेच दो, तो अगर 2 महीने का डेटर्स है तो दैट इंक्लूड्स योर जीएसटी पोर्शन। तो सही प्रोजेक्शंस करने के लिए यू कैन ऐड जीएसटी। बट हम क्या एज्यूमशन करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो नेट जीएसटी लायबिलिटी विल बी नॉट योर ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। तो हम ये आपके एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है, यू आर फ्री टू डू इट, बट माय पर्सनल टेक इज इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। अगर आप सेल्स प्राइस लोगे तो यू विल बी डूइंग मोर जस्टिस, देन योर वर्किंग कैपिटल अराइव विल बी मच मोर परफेक्ट देन विदाउट जीएसटी। Okay. So one more question. Is it necessary to have profit in all the years? It might be Not- possible to have loss in the first year. बहुत सारी कंपनियों में होती है जो लॉस हो सकती है। आपको जिस तरह से क्लाइंट से डेटा मिला, अगर लॉस है तो लॉस है, तो देन आपको समझ लो कोई इंडस्ट्री में 3 साल तक लॉस है। मैं बताता हूँ, एक स्कूल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने रिसेंटली बनाया, उसमें पहला 3 साल लॉस आया बिकॉज वो प्री प्राइम मतलब 1st to 5 का स्कूल कर रहा है। तो जनरली क्या होता है उसका, क्या फर्स्ट ईयर आके कोई 4th का एडमिशन नहीं लेता, तो फर्स्ट ईयर आके फर्स्ट थोड़े थोड़े 2nd, 3rd, 4th, 5th में भी ले गए, बट फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो जब 2nd में जाएंगे तो सेकंड मतलब क्लास 2 के बच्चे भी फुल होंगे, तीसरे साल में जाएंगे तो क्लास 3 का बच्चे भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे आ जाएगा अगर स्कूल है। तो स्कूल प्रोजेक्ट में, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में, सर्विस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में जनरली फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर लॉस रह सकती है। तो आपका प्रोजेक्शन में अगर लॉस आ रहा है तो आपका रिपेमेंट, मोरेटोरियम, बैंक लोन कितना लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कारण लॉस कोई बैंक तो फंडिंग करने वाले नहीं है। अगर लॉस आ रहा है तो आपको प्रमोटर को एडवांस में बोलना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू मेक प्रोविजन इन सो वे दैट यू कैन सर्व एटलीस्ट इंटरेस्ट पोर्शन। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि एवरी ईयर प्रॉफिट रहना चाहिए, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर लॉस आ ही सकता है। Okay. What are the different aspects which can be seen in economic viability report? नहीं, इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट में वही देखते हैं कि भाई एक तो सर्टेन पैरामीटर्स, डीएससीआर रेशियो क्या आ रहा है, कैश फ्लो क्या आ रहा है, एबिटा मार्जिन क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको कमेंट करना है कि वेदर दिस इज इकोनॉमिकली वायबल और नॉट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे इस केस में 75% बीपी आ गया या 70% बीपी आ गया, मतलब वेरी हाई बीपी है। डीएससीआर आपका कोई पर्टिकुलर ईयर में 1 के आसपास ही आ रहा है, एवरेज डीएससीआर 1.3 आ रहा है, तो यू कैन इजीली कमेंट कि भाई दे आर नॉट सेफ्टी ऑफ मार्जिन फॉर बैंक फॉर सैंक्शनिंग दिस प्रपोजल is not that great. You cannot say bank, you cannot instruct bank you should not sanction, but you have to give your comment कि भाई ये safety of margin is very less, तो bank has to take due precaution while sanctioning loan. बैंक कई बार क्या करती है, अभी मेरे साथ हुआ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें 70% ब्रेक इवन था, बैंक को लगा कि यार इतना 75% हम नहीं देंगे, तो बैंक ने उसको बोला कि इस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपका बीईपी बहुत हाई आ रहा है, तो हम 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ही सैंक्शन करेंगे, बैलेंस 50% आप लाओ, तो वी आर शेयरिंग रिस्क इक्वल। तो बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन बैंक ऑल्सो कैन फॉर्मुलेट देयर पॉलिसी, भाई इसमें कितना लोन देना चाहिए या एट ऑल नहीं देना चाहिए। Okay, so one more common question was, is a chartered accountant
liable to sign the project report or not? No, no way. You should not sign any project report because क्या होता है, there are 1-2 cases pending against chartered accountant firm. प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह साइन कर दिया, जनरली सबको मालूम है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लेके गया क्लाइंट में, अकाउंट अर्ली मॉर्टेलिटी हो गई कि आपने सैंक्शन किया, डिसबर्स किया और 1 साल के अंदर कंपनी अकाउंट एनपी हो गया, तो बैंक कैन फाइल ए सूट कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंड इन ग्लोव विद प्रोमोटर्स डिफ्रॉडेड द बैंक। तो आपको किसी भी हालत में साइन नहीं करना चाहिए कोई भी प्रोजेक्टेड फिगर। Okay. So can this project report be used for service sector financing? 100%। आपको मैंने जो समझाया वो बेसिक फॉर्मेट समझाया। लेट्स सी, ये आपने मैन्युफैक्चरिंग समझाया। लेट्स सी, 1 मिनट गो जाते हैं अपन, स्क्रीन पे जाता हूँ, ये हैंग क्यों होता है भाई। अगर सपोज से एक होटल इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट बना रहे, बराबर, होटल में प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो एस्टिमेट्स ऑफ सर्विस एंड रेवेन्यू, इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होती थी कि आपके कितने रूम कीज बने हैं। सपोज 50 रूम का है तो 50 इंटू 365 डेज दीजिए और इंस्टॉल कैपेसिटी मैक्सिमम आप 50 इंटू 365 दिन, 50 रूम कीज है 365 दिन, इतना आप रूम लेट आउट कर सकते हो। दैट इज योर टोटल कैपेसिटी एक्चुअल का 100%। नाउ जनरली होटल का यहाँ जैसे हमने लिखा है एस्टिमेटेड आउटपुट, यहाँ क्या होता है एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी। आप होटल प्रोजेक्ट में 30, 40, 50% जो भी होटल का प्रोजेक्ट का धारा है या जो आपका क्लाइंट है जो होटल प्रोजेक्ट डाल रहा है वो बोलता है नहीं इसको आप 40, 50, 60% ऑक्यूपेंसी पकड़ो, तो पर डे चार्जेस आपको मालूम है। अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ ए बी है तो वहां हो सकता है 4 प्रोडक्ट हो सकता है, डिलक्स, सुपर डिलक्स, कोई हॉल। तो अल्टीमेटली थियोरी इज दैट कि भाई आपको एक कॉस्ट रेवेन्यू एंड उसका कॉस्ट जनरेट करना है, एक डायरेक्ट कॉस्ट की शीट बनानी है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट की शीट बनानी है एंड आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस ऑफ फाइनेंस बनानी है। तो वर्किंग सेम है, बेसिक फंडा, खाली नॉमेनकल्चर चेंज हो जाएगा। अभी जैसे ये अगर होटल इंडस्ट्री होती तो रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं आता था, यहाँ दूसरे कॉस्ट आते थे भाई। वहां डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वहां मैन पावर कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्ट कॉस्ट एंटायर होटल का। तो जो जो उस इंडस्ट्री का डायरेक्ट कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, जो उस इंडस्ट्री का इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो वर्किंग रिजल्ट्स में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम चेंज करके एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सर्विस और एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट टू जनरेट रेवेन्यू। नॉमेनकल्चर आप चेंज कर दो, बेसिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट यही रहने वाला है। Okay. So they want to know the benchmark of various ratios which are generally accepted. सी, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम भी बोला था कि आजकल एक डेट, पहला तो देखिए DSCR, ये 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। करंट रेशियो 1.33 के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपका जब CMA डेटा आप लोगों ने से बहुत लोगों ने बनाया होगा, अगर 1.33 अगर आपका रेशियो नहीं है या 1.25 से ऊपर नहीं है तो आपका मैक्सिमम परमिजेबल बैंक फाइनेंस बैठेगा ही नहीं। तो वो रेशियो इंपॉर्टेंट है। एक रेशियो जो आजकल न्यू जनरेशन बैंक इज वेरी कॉशियसली सी व्हाट इज योर गियरिंग रेशियो इंस्टेड ऑफ डेट इक्विटी डे 6 12 डिवाइडेड बाय TNW। वो रेशियो 2.5 के ऊपर बैंक इज बिट स्पेक्टिकल कि भाई यार ये गियरिंग रेशियो बहुत ज्यादा हो रहा है। जनरली अपन सुने हैं डेट इक्विटी रेशियो 1:2, बट आजकल बैंकर्स डेट इक्विटी से ज्यादा TOL TNW पे ज्यादा फोकस करती। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो मैक्स 2.5 डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री में वो 2 से ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ इंडस्ट्री में 2.5 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो एक्सेप्शनल हो सकती है इंडस्ट्री वाइज। बट कैपिटल गियरिंग रेशियो एक अंदाजन ये बोल सकते हैं 2 से 2.50 के बीच में रहना चाहिए, which is a healthy sign and bankers will look into। DSCR मैंने पहले ही बोला 1.5 से 2 के बीच में रहना चाहिए। सी, कोई कारण से DSCR 4 आ गया, सर फॉर एग्जांपल आपका इतना प्रोजेक्शन कैश प्रॉफिट इतना आ रहा है, टर्म लोन आप प्रोमोटर बोलता है यार नाम सेक के लिए लोन ले लो, हमको लोन ज्यादा नहीं चाहिए, DSCR बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई आपने 7 साल का रिपेमेंट किया, उसके जगह 4 साल में रिपेमेंट कर दो, आपका कैश फ्लो इतना अच्छा है, व्हाई यू वांट टू टेक कैश।
अच्छा DSCR अगर सपोज 3 आ रहा है तो आपको और एक चीज कर सकते हो, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमने क्वास इक्विटी लिया था मीन्स ऑफ फाइनेंस में, तो जो DSCR बनाते हो उसको यूटिलाइजेशन में रीपेमेंट ऑफ वो भी ले लो क्वास इक्विटी, तो एग्जैक्ट DSCR रेशियो मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसा ओवरऑल DSCR रेशियो 1.5 to 2, current ratio 1.25 to 1.5, capital gearing ratio 2 to 2.5. These are three couple of things which is we should see that भाई ये सारी चीजें बैंकर्स तो देखेगी, अपार्ट फ्रॉम योर विंटेज, इंडस्ट्री बैकग्राउंड, कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक क्या सिक्योरिटी दे रही है, किस तरह की इंडस्ट्री डाल रही है, कोई नेगेटिव लिस्ट का प्रोडक्ट नहीं, फिर इंडस्ट्री का ओवरऑल सिनेरियो भी देखते हैं। सर्टेन आपको मालूम है 2-3 साल पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नेगेटिव लिस्ट में चला गया था। कुछ बैंक है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है कि भाई उनके लिए नेगेटिव लिस्ट है, हम कोई ज्वेलरी प्रोजेक्ट लेंगे। तो उस तरह का वो सारी चीजें आप एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे या बैंक के साथ इंटरेक्शन करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा बैंक किस तरह का लोन सैंक्शन करता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, there's one more couple of questions left. Whether quasi equity must be interest free or should it be with interest payment obligation? देखिए क्वासी इक्विटी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म अगर सपोज प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा रहे हैं तो ये इट इज ए वे ऑफ डूइंग टैक्स प्लानिंग, इट कैन नॉट बी इंटरेस्ट फ्री। आजकल तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बाय लॉ यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट। बैंकर जनरली क्या कंडीशन डालता है कि योर इंटरेस्ट रेट पेइंग टू योर ओन पार्टी शुड नॉट बी मोर देन बैंक इंटरेस्ट रेट। सपोज लो बैंक आपको 9% में फंडिंग दिया है तो ऐसा नहीं हो कि आपके जो क्वासी इक्विटी आ रहा है उसमें आप 12% दे दो। दे विल पुट ए क्लॉज इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी मोर देन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट डेफिनेटली यू शुड पे। व्हाई यू शुड पे? अभी मैं बता रहा हूँ, एक पार्टनरशिप फर्म है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट रुपया लगा रही है और आपको मालूम है घर के लेडीज फाइल है जिसमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, तो यू कैन लेडीज फाइल, HUF फाइल से अगर आपने लोन लिया है और उनको इंटरेस्ट दिया है तो बेसिक 5 लाख तक एग्जम्पशन है। तो द वे आप तो खर्चा बुक कर रहे हो आपके फर्म में जहां प्रॉफिट जनरेट हो रही है, एंड यू आर डूइंग बेटर टैक्स प्लानिंग सो दैट योर टैक्स आउटगो फैमिली एज ए होल और पार्टनरशिप फर्म एज ए होल इज मिनिमल। तो क्वासी इक्विटी में इंटरेस्ट देना चाहिए। बैंक का ये कंडीशन जरूर आएगा कि योर रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट यू आर पेइंग। Okay. And sir, in case of seasonal business, the working capital may fluctuate a lot. So, in that particular case, is projections required on quarterly basis? हाँ नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कि जब आपका सीजनल बिजनेस है, आप आज हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर सेशन लिया है, प्रोबेबली कभी टाइम मिलेगा तो एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी लेना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में आपको बेसिकली CMA डेटा बना के देना पड़ता है। तो CMA डेटा में फॉर्मेट है, उसमें आपको सीजनल के हिसाब से पिक डिमांड वो निकाल सकते हैं और वो आपको असेसमेंट करके बैंक को बोलना पड़ेगा। अभी जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है हु इज मैन्युफैक्चरिंग स्कूल बैग, तो उसको मार्च से लेके जून तक उसका पिक सीजन है, बिकॉज स्कूलें नए खुलते हैं, नए स्कूल बैग बिकता है, तो उसको जनवरी से इन्वेंट्री बिल्टअप करना पड़ता है। तो हमने जब सैंक्शन कराया तो बैंक को बोला कि भाई मेरा सैंक्शन में एक एडहॉक लिमिट की फैसिलिटी सैंक्शन में रहना चाहिए कि आई शुड गेट एडिशनल मनी ड्यूरिंग दिस सीजन, पिक सीजन, जनवरी टू, हमने जून तक उनको बोला था जनवरी टू जून, तो बैंक हैप्पीली सैंक्शन किया, भाई आई विल गिव यू एडहॉक लिमिट्स ऑफ ओवर एंड अबव योर सैंक्शन लिमिट, एडहॉक लिमिट्स फॉर फर्स्ट सीजन। तो उस तरह का कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीजनल पीरियड अगर है इस तरह का तो आपको आपके प्रपोजल बैंक में डालते टाइम ही उसको वर्कआउट करके बैंक को बता देते। Sir, any example for viability report? If you could quickly share. वायबिलिटी रिपोर्ट आप अगर गूगल सर्च करेंगे TEV रिपोर्ट तो शायद आपको मिल भी जाएगा, बिकॉज कोई वायबिलिटी रिपोर्ट हमने जो बैंक के लिए बनाया है वो अपन शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ से मैंने स्टेट बैंक के लिए बनाया है, तो आई कैन नॉट शेयर दैट वायबिलिटी रिपोर्ट विद यू।
बट वायबिलिटी रिपोर्ट में यही सारी चीजें जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रेजल करते हैं कैसे अपन वी आर गुड एट अप्रेजल, तो अप्रेजल में यही सब देखने अपने को कि DSCR रेशियो क्या आ रहा है, BEP क्या आ रहा है, कितना कंफर्ट लेवल है। थोड़ा बहुत आपको गूगल सर्च करके भी देखना पड़ेगा कि क्या इसका मार्केट है, क्या रियली डिमांड है, क्या प्रोमोटर जो क्लेम कर रहा है वो सही है क्या, थोड़ा बहुत तो आपको वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। अदरवाइज यही सारी चीजें कि भाई इकोनॉमिकली जो क्लाइंट ने आपको डेटा सबमिट किया है उस पर अगर मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करूं वेदर दैट प्रोजेक्ट कैन टेक चार्ज ऑफ से वैगरीज, कोई सीजनल वैगरीज, अनरेस्ट, पैंडेमिक, इस तरह का कोई कारण से 5-10% इधर उधर हो गया तो वेदर दैट project can absorb those kind of vagaries in your selling price, in your key input cost, in your raw material cost. वो आपको देख के आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मोस्ट probably if you do Google, you will get number of TEV report. Sir, one last question for the chartered accountants who want to practice in this project reporting field. What tips and advices would you give to them? सी मैं तो बोलता हूँ जो अभी तक नहीं करते हैं उनको इस फील्ड पे आना ही चाहिए। सिंपल है, आप क्लाइंट के लिए सपोज आप क्लाइंट का इनकम टैक्स देख रहे हो, GST देख रहे हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप जनरली बैंकिंग साइड देखते नहीं हो बट यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। तो आप शुरू में आपके क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई आपका वर्किंग कैपिटल उसका या टर्म लोन कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हम करेंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंस रिपोर्ट कैसे बनाना है वो आज हमने बताई है, उसके बेसिस पे आपको टर्म लोन का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको टर्म लोन इस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के थोड़ा अदर डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे जैसे प्रोमोटर्स बैकग्राउंड ये वो सब कुछ, बिकॉज यू नो देम, बिकॉज दे आर योर क्लाइंट। तो ये काम अगर करेंगे तो यू आर डूइंग सर्टेन वैल्यू एडिशन, यू विल नॉट गो टू कंसल्टेंट लाइक मी हु इज डूइंग डे इन डे आउट दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर सपोज आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हो रहा है तो 1-2 साल आपके आसपास में जो फिनेंशियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग क्लाइंट टू देम, बेटर यू आस्क देम कि भाई ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारे बैक एंड काम हम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, सारा चीज आप करो, बिकॉज आपको नॉलेज है कौन से बैंक में जाने वाली है, किस तरह के रेशियो बैंक को लगने वाला है, तो आपके साथ मिलके हम काम करेंगे एंड विल शेयर द रेवेन्यू। आई थिंक दोज हु आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज दे विल हैप्पीली टेक यू एज ए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। क्या बहुत बार चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, यार भाई मैं ये क्लाइंट तेरे को दे रहा हूँ, मेरे को रेफरल फीस दे देना 25%, तो दैट इज शॉर्टकट। आप जाए ही नहीं, बस उसने सारा काम कर लिया। मुझे मालूम पड़ा जिस बंदे ने उसको पैसा लाके दिया, 1-2 साल में वो आपके ऑडिट टैक्सेशन वर्क भी लेके जाए, बिकॉज क्लाइंट उसके साथ डायरेक्ट हो। तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग रेफरल फीस, जॉइन हैंड्स विद दोज चार्टर्ड अकाउंटेंट या दोज फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, तेरे को भलाई 1/3 देना है, 25 पैसा देना है, आधा करना है, जो फीस करना है वो डिसाइड कर लो और उनके साथ में करो। दिस विल व्हाट हैपन, यू विल बी लर्निंग एज वेल एज अर्निंग। एंड अगर आप रेफरल फीस पे काम करोगे, सीधा सीधा क्लाइंट उसको दे दोगे, भाई ये इससे करा के दे, जो फीस तेरे को मिलता है उसका 25% मेरे को दे देना, तो आपकी अर्निंग तो हो जाएगी, लर्निंग नहीं। Okay, so we're almost done with all of the questions. One quick announcement. Day after tomorrow, that is on 18th, we have one session, a live session on analysis of market by way of open interest and even the gratitude ceremony at Institute Pune ICI. So kindly register for the said session. The speaker would be CA Ashish Bhati, a renowned speaker. So yes, the timings are 6 to 8 p.m. followed by dinner at the branch. So stay tuned and I hope that you register for the said session as soon as possible. And yes, so the session was really fabulous. I know you in person and it was really a treat for all of us to listen to you. And we would definitely love to have you here live in Pune. So let's hope for the best. We'll be again scheduling a session. And that time I want you to be at the branch itself, not from Thane, but in Pune. So yes, I could see the number of questions and the questions shows the interest of all the audience. So yes, it was a great session and a valuable learning, and the topic was really very interesting. And as said, we'll be planning few sessions more over here on working capital because there are many students and
many chartered accountants who really face a lot of difficulty when it comes to project reporting. And as you told, yes, we try to find someone and give him the work and ask for the remuneration 20%, 25%. So somewhere we need to learn. And yes, so thank you, sir, for giving your valuable time and addressing all the questions. It was really a pleasure to have you here. Thank you, audience, to be very, very patient and even throwing all your questions and queries. And see you all day after tomorrow at Pune ICI Bhavan. Okay, Ah, with this, yes, sir. Pranav, only one announcement. Yes, sir. Kindly ask those Pune branch responsible कि भाई ये जो presentation आज बनाया है वो किसको mail करना है so that it goes to every participant, those who have participated. Number one. Number two, I have shared my number in my screen. If you WhatsApp me your email ID, then probably I can also send you. But it is better everybody will get it, those who have attended or registered for this session. So I request Pranav, if you can share, Yes, sir. or you can ask Deepak to share me email ID where to I have to send this. No problem, sir. I'll text you. No need to bother, sir, with your email IDs, because, sir, there'll be a lot of messages to you for the email IDs. Yes. So no worries. What I'll do is I'll get a entire tracker and we'll share with all the participants the presentation and the Excel sheets. Okay. So Thanks. I'll let you know the email ID. Okay. Yes. So I formally conclude the session for today. Thank you so much, sir, once again, and thank you all the participants. Have a great evening ahead. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you.